9:30 is the time. Yeah. So we are live. You can start now, Ayla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. मैं आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के बिहाफ पे। ये जो सीरीज़ है वेबिनार की जो हम पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, ये इसका 17th वेबिनार है और आज की हमारी डिस्कशन चेयरमैन नेप्रा तौसीफ फारूकी के साथ है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं जो हमारे पिछले वेबिनार्स रहे हैं। हमने होस्ट किए हैं 3 डायलॉग्स ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर, जिसमें साउथ एशिया के ऊपर चाइना इंडिया का स्टैंड ऑफ और इम्प्लीकेशंस ऑन पाकिस्तान के ऊपर हमने डायलॉग्स किए हैं। इसके अलावा क्योंकि एक पाकिस्तान का फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, so the founder of CPG as well as Nutshell, he himself moderated and hosted 3 very important sessions with 3 key federal ministers, the Education Minister Shafqat Mahmood Saab, Science and Technology Minister Fawad Chaudhry Saab, and the Information Minister Senator Shibli Farah Sahab. और ये जो तमाम जो फ्यूचर और द वे फॉरवर्ड के डायलॉग्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगे, सो प्लीज़ फॉलो ऑन दिस। जो तमाम ये डायलॉग्स दे आर अवेलेबल ऑन नटशेल कॉन्फ्रेंस की यूट्यूब पे, सो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। इस वक्त हमें बहुत सारे मेंबर्स ने जूम पे ज्वाइन किया है और हमारा बहुत एक बड़ा ऑडियंस फेसबुक लाइव पर है। आज के मैं आपको मॉडरेटर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं एंड देन आई गो इनटू इंट्रोड्यूसिंग आवर कीनोट स्पीकर एंड द चेयरमैन नेप्रा। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जफर सुबहानी साहब, ही इज द बोर्ड मेंबर ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन। देन आई हैव विद मी आफ्ताब भट्ट साहब, ही इज द सीईओ कैपको पावर प्रोजेक्ट। सो जो आज का हमारा जो डिस्कशन है, लास्ट about 2 weeks ago, we did a session with the CEO of K Electric. Power sector is one of the most important sectors in the country और इसके ऊपर बहुत सारी debate होती है। So मकसद इस discussion का है कि हम एक बड़ी candid discussion करें with the key stakeholders. So Tausif, thank you so much for joining us and taking out time. We know that with your role as the chairman of NEPRA, you are extremely busy and you are dealing with so many key issues that affect almost every stakeholder and every Pakistani. A little bit about Tausif. Academically, he holds an engineering degree and also holds MBA from LUMS and has attended many executive courses, including that from the Columbia Business School. He has a stellar experience of almost 3 decades in the power sector. Tausif, before I hand over to you for the intro, मैं आपके लिए भी और हमारे ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बताना चाहूंगी, so we all know what to sort of expect. Since NEPRA is the regulator that deals with almost all sort of stages and all groups of power generation and transmission, so we will be talking about when we would like to discuss with you the generation landscape. Then we would like to touch upon the transmission and distribution. Then we would also like to hear from you what are the challenges, or because hum future forward discussion mein believe karte hain, then we would ask you and your thoughts on what should the future look like and what is that needs to be done. And very briefly, we would also like to touch upon one of the key issues that is ongoing, Karachi Electric. So over to you. Please share your thoughts with us and also give us a sense and recap for the audience the role of NEPRA. So over to you, Tausif. बहुत शुक्रिया आयला for this very in-depth introduction. Let me start by saying that yes, you are absolutely right. Heading NEPRA is not an easy job to do because we have first of all 2 very diverging roles here. First one is to take care of the investors'
investment coming in the country. And second being we are the only custodian taking care of the interest for the consumers of Pakistan, and every damn thing coming in between. So जब मुल्क में investment आती है, उसको ensure करना कि वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट हो और उसकी सारी के बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू ट्रांसमिशन, थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स कंज्यूमर तक पहुंचाना और ये इंश्योर करना कि कंज्यूमर्स जो एनर्जी ट्रायलेमा है, जिसमें कि हमारे पास अफोर्डेबिलिटी है, हमारे पास रिलायबिलिटी है और उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसको इंश्योर करना। तो इस वक्त मैंने 5 डिफरेंट चीज़ें कही हैं जिनको मैं रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि वो फाउंडेशन है नेपरा की बेसिकली। एक ये कि हम ये एनर्जी ट्रायलेमा को इंश्योर करना, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना, और उसके बाद कंज्यूमर के इंटरेस्ट को वॉच करना कि उनको इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल अंदाज में मिले। ये नेपरा का प्राइमरीली ये रेगुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव बेसिकली 4 की फंक्शंस। हमारा पहला काम ये है कि हम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको एक थ्रू साउंड ड्यू डिलिजेंस हम उनको लाइसेंस इशू करें, और इसकी सारी जांच पड़ताल करना, ड्यू डिलिजेंस करना, टेक्नोलॉजी वाइज, लोकेशन वाइज, और इन सारी चीज़ों को मलूज़े खातिर रख के और उसके बाद इंश्योर करना कि वो प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड डिलीवर करें। उसके बाद तीसरा हमारा मेन फंक्शन है M&E का, जिसमें मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट है कि जो प्रोजेक्ट्स हमने लाइसेंस दिए हैं, टैरिफ दिए हैं, उसको हम इंश्योर करें कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं दे आर अबाइडिंग बाय दोज रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो चौथा हमारा काम ये है कि हम कंज्यूमर अफेयर्स डिवीजन एक हमारा है, जैसे अभी जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कराची में ये की और एक्सेसिव लोड शेडिंग के इश्यूज आए, तो उसमें मेन डिपार्टमेंट जो इसमें कंज्यूमर अफेयर्स डिवीजन भी है और M&E भी कर रहा है क्योंकि दे आर आल्सो इन्वेस्टिगेटिंग दैट। तो ये 4 मेन फंक्शंस हैं हमारे। तो ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं अपने ऑडियंस के लिए कि हमारा काम प्रीस्ट वाला या निकाह ख्वाह वाला नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ माय कलीग्स इन नेपरा वर अंडर द इम्प्रेशन कि जब हमने निकाह पढ़ा दिया तो उसके बाद हम फारिग हैं और वी कैन टेल द ब्राइड एंड ग्रूम के नाउ यू आर हैप्पीली मैरिड एंड यू कैन जस्ट गो एंड लिव अ लाइफ हैप्पीली। नहीं, हमारा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। और चूंकि हमारा मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट डिवीजन जो है उसने प्रॉपरली उस तरह से रोबस्ट अंदाज में काम नहीं किया जैसे होना चाहिए था, तो रेगुलेटर की वो जो एक साख होती है वो निकल के सामने नहीं आई। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं अबू धाबी में था जी यहाँ आने से पहले, बिफोर ज्वाइनिंग दिस पोजीशन, और आई एम वेरी लकी, आई एम प्रॉब्ली द ओनली इंजीनियर इन द हिस्ट्री ऑफ वापडा जिसने पहले टेक्निकल साइड पे सर्व किया एज एन इंजीनियर। फिर मैंने 2 साल की स्टडी लीव लेके लम से MBA किया, एंड आफ्टर डूइंग माय MBA I served the finance department of WAPDA. So I've seen both the worlds actually of WAPDA. But then I'm also very lucky to start my career in the IPP or IWPP business by joining as manager or non-Gora manager in Kodadu Power Company. I was the first commercial manager there. उसके बाद मैं अबू धाबी चला गया था, और then I worked on 3 top 3 projects. First with an American company called CMS Energy. उसके बाद Marubeni of Japan, whereby we took over to existing projects of Abu Dhabi government, and then we doubled the capacity of the plant. So basically, मैं आपको ये background इसलिए दे रहा हूँ कि the regulator there and very because I was the pioneer in the private power and water industry there, because they also have, in addition to power, they also have water through desalination technology. तो हम लोगों ने वहाँ पे एक तरह से शुरू में वहाँ पे रेगुलेटर नहीं था, तो वी वर आल्सो सर्विंग एज रेगुलेटर। तो इनिशियली 1, 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स तो हम लोगों ने किए,
उसमें we were acting as a very disciplined, self-disciplined companies, because the regulator then we saw the cap right from generation to transmission to distribution. Yahan, what I felt when I joined here, the very first thing that I felt is that the regulator is without teeth, or it's a toothless regulator. So what I'm trying to do is, from a very passive approach, now I've tried to move within 1 year. On 4th of August, I'll complete my first year in NAPRA. I've tried to make this organization an active regulator. And I'm also going to change the gears and trying to make it a proactive, whereby I'll give teeth to this organization. And when we bite, feel the bite. And everybody should feel that there's a regulator out there watching us all the time, 24/7. So basically, what are we going to watch? वही terms and conditions जिस पे उनको license दिया है, जिस पे उनको tariff दिया है. We need to make sure कि अभी जैसे आपने ये मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट आई, उसमें काफी चीजें उन्होंने रिपोर्ट की, excessive profits और ये वो all those things. तो ensure कि पाकिस्तान में जो भी चीज हो वो एक साइंटिफिक बुनियाद पे हो. The very first question I asked my colleagues when I joined as chairman NAPRA कि हमने कितने लाइसेंस इशू किए हैं. तो हमने मेगावाट्स के लाइसेंस इशू कर दिए हुए ऑलरेडी, और हमारी इस वक्त जो ग्रेड कैपेसिटी वो 36,000 मेगावाट्स की है, और हमारी इस वक्त जो हाईएस्ट हमने टच किया 23,000 मेगावाट्स को हमने टच किया है, जो हाईएस्ट हमारी इस वक्त डिमांड है. तो मैंने उनसे पूछा व्हाट वाज द रैशनल ऑफ इशूइंग द लाइसेंस. अगर हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट 23,000 मेगावाट्स है, हाउ कम वी हैव इशूड 63,000 megawatts worth of licenses? और खुदा ना खास्ता ये सारे अगर लग जाएं तो who's gonna purchase all this electricity, because most of them are take or pay contracts. तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि हमारा काम है जी लाइसेंस देना, इसलिए हम लाइसेंस दे रहे हैं. There must be a requirement. आखिर देखें ना, ये एक अजीब सी अगर आप कहें कि भाई यहाँ पे आपका माल कितना बिकेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा ये हो रहा है कि पहले हमने 63,000 मेगावाट्स की सप्लाई इंश्योर कर दी है, और डिमांड के बारे में हमारी कोई वो नहीं है. तो अभी पहली दफा मैंने पुश किया एनटीडीसी को. 2005 में उनको ये इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान डालना चाहिए था, बट दे आर ओनली 14 years लेट. तो 2019 में जब मैं आया हूँ, उसके बाद पहली दफा उन्होंने ये एक साइंटिफिक हमें तरीका पेश किया है जिससे पूरी दुनिया अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान बनाती है. तो वो पहले लेके आए थे, उसमें कुछ चेंजेस हुई. अभी इसी महीने हमने 2 हफ्ते पहले फिर उनका एक और जो अब ग्रेडेड उनका प्लान है उसको हमने किया है. और बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा. लेकिन आई एम ट्राइंग टू गिव some sanity, bring some sanity in the way we are managing things, the way we are regulating things, the way we are expanding the energy or capacity in Pakistan. तो उसमें देखें, कोई चीज मुश्किल नहीं है. हमने चीजों को यहाँ खुद बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है. हाँ, वी आर शूटिंग इन डार्क. लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं. और हर चीज जो है वो एट द एंड ऑफ द डे हम गवर्नमेंट पे पास ऑन कर देते हैं, या फिर consumer. And I sincerely feel that we have already almost reached that limit. तो अगर हम further efficiencies by default हमारा system अब बर्दाश्त नहीं कर सकता. So I think we have no choice but to minimum or eradicate इतनी bad practices हैं, or try to be efficient going forwards. So I think this is enough introduction. I'm open to any questions. मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि दिन रात मैं यही करता हूँ. तो I'm more than happy to answer any questions you have. और ठीक है, तौसीफ, थैंक यू सो मच. ये बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा कंसाइज आपने एक इंट्रो दिया. और जैसे आपने बात की कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग ये बहुत ही की एरिया है, और अगर एक थॉट प्रोसेस एक मैप आउट हो जाए कि किस तरीके से हमने फ्यूचर में जाना है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरेशन के लिए आई विल पास ऑन द बटन टू माय सीनियर कॉलीग जफर साहब. जब हम डिस्कशन आपस में भी कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि जनरेशन एक बहुत की एरिया. आपने
कुछ चीज़ों को ऑलरेडी टच अपॉन कर दिया जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, बट मैं जफर साहब की तरफ जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि ही कैन probably start with his questions. जी तौसीफ माशाल्लाह यू हैव गिवन अ वेरी क्लियर व्यू अबाउट इट कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है और किस क्या ऑब्जेक्टिव के साथ आए। एक साल भी आपको कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने ये सवाल भी मुझे करने थे, वो ऑलरेडी आपने जवाब दे दिया उसके कि अगस्त के 4 पे ज्वाइन किया है और आपको अभी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है। और जिस तरह तौसीफ का हाउस होल्ड नेम है, एवरीबडी नाउ नोज अबाउट के जो है नेपरा का चेयरमैन, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक सवाल जो मुझे करना था कि पास की चीजों के बारे में आपने कहा कि नेपरा का एक ट्रेडिशनल रोल था और वो ये था कि बस निकाह करवा लिया, प्रोजेक्ट आ गया, आगे क्या होता है। मेरा एक सवाल, हमने यही प्लान किया कि हम पास पे ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, पर एक सवाल मैं जहन में करता हूँ कि अगर आप तौसीफ फारूकी होते 1997 से और ये प्रोजेक्ट लगते और इस तरह से लगते, तो 3 चीजें कैसे वो कौन सी करते जिसकी वजह से हम इस मुश्किल में नहीं पड़े हैं। बहुत ब्रीफ सा सवाल इसका है कि अगर तौसीफ फारूकी 1997 में होते और अभी तक होते, तो क्या चीज हमारे पावर सेक्टर में जो मिस्टेक्स हुई थी जिसकी वजह से ये इशू जो है, हम दुनिया की एक अजूबा कौम है कि कभी बिजली ज्यादा होती है, कभी कम होती है आपकी, कभी जो है आपकी अनअफोर्डेबिलिटी हो जाती है। इतनी बिजली लग गई है, कैपेसिटी पेमेंट 1.5 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट 2 साल के बाद हो जाएगी। ये ऐसा अजूबा कंट्री का है कि कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आ रहा है। सो प्लीज ओवर टू यू तौसीफ। जी जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं 3 चीजें बड़ी सिंपल करता। मैं एक तो टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करता। देखें मेरे पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि मैं चला दूं और सब चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैंने पहले दिन जब अपना चेयरमैन नेपरा के तौर पे ज्वाइन किया तो मैंने अपने जो व्हाइट बोर्ड पे पहली चीज लिखी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसके बाद पहली चीज ये लिखी नो टेक और पे प्रोजेक्ट्स। ये मेरी प्रेफरेंस है। जिस हद तक कोशिश कर सकूंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर हम ये इस मेहनत से में ना फंसते तो हमारे काफी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते। दूसरा है इंपोर्टेड फ्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स। मैं एक दफा सऊदी अरेबिया गया जब मुशर्रफ साहब के जमाने में IPPs, और ये आफ्ताब साहब को याद होगा, ये शायद कोडद्दू पावर कंपनी में तो नहीं थे, लेकिन वी हैव फेस द म्यूजिक। हबको वालों ने भी किया, उन्होंने जरा ज्यादा किया, तो हम पे कोर्ट केसेस हो गए। तो मैं सऊदी अरब गया तो उम्रे पे गया, उसके बाद एक दिन दोस्तों ने खाने पे बुलाया, उन्होंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे IPPs की। तो मैंने कहा यार बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। कहते क्या? मैंने कहा अगर सऊदी अरेबिया में आप इंडिजिनस फ्यूल जो आपका लेट्स से फर्नेस ऑयल है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, कल को आप ये डिसाइड कर लो कि आज से आपने सारी इलेक्ट्रिसिटी हाइडल जनरेशन से करनी है या हाइड्रो से करनी है, और उसके बाद पानी आपने सारा अमेरिका से इंपोर्ट करना है उसके लिए, तो जो आपका हशर होगा वो एग्जैक्टली हमारा हशर हो रहा है। क्योंकि हमारे पास इंडिजिनस फ्यूल जो है वो वाटर इंडस पे हमारे पास 1 लाख एटलीस्ट 1 लाख मेगावाट्स का पोटेंशियल है। रन ऑफ द रिवर पे मेरा ख्याल में कोई काउंट ही नहीं कर सकता हमारे पास कितना पोटेंशियल है, लेकिन हमने वो सब जाया कर दिया। वो सब इंडिजिनस फ्यूल है, तो वो अगर हम उस पर जोर देते, आज आप देखें कि जिनके वो प्रोजेक्ट्स मंगला, तरबेला, जिनके सारे डेड रिटायर्स हो चुके हैं, 1.5-2 रुपए में आपको पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। आज वो ना होते तो आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुकी होती है। 9000 मेगावाट्स प्लस हाइड्रो जो आपको इतना सस्ता पड़ रहा है। तो मैं अगर होता तो मैं कभी इंपोर्टेड फ्यूल वाले प्रोजेक्ट्स करना चाहता, मैं कभी टेक ना चाहता। तीसरा, मैं डे 1 से एक रेगुलेटर, जिस दिन मैं पहला पावर प्रोजेक्ट लेके आया था हबको का, मैं उसी वक्त एक नेपरा जैसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके आता, और अगर मैं नेपरा का हेड होता तो मैं हर चीज बड़ी साइंटिफिकली करवाता। ये IG सेप की जो मैंने बात की, ये 2020 में 2005 में होता तो क्या होता कि आपके पास एक क्रिस्टल बॉल, आप बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई दे के चलते ना। आप कभी डिमांड आपकी बहुत कम हो जाती और आप ओवर कैपेसिटी में आ जाते या कैपेसिटी ट्रैप में आ जाते, ना आप कभी शॉर्टफॉल में आते। तो ये तो नहीं होता कि 100% मैच होता, लेकिन जैसे एडवांस अंदर वो एक स्पिनिंग रिजर्व रखते हैं, कुशन में भी 10%, तो वो आप जरूर करते और वो होना भी चाहिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हम बहुत आराम से चीजों को
I hope I answered your नहीं ठीक है, यही question. इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये टेक एंड पे जो है आपका, अब चूंकि इस वक्त तो जो रिपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है उस पर सवालात करूंगा, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है टेक एंड पे जो चीज है, जो जिस तरीके से कैपेसिटी हमारे पास 13,000 मेगावाट इस वक्त सिस्टम में है आपकी, और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी लोड शेडिंग हो रही है आपकी। देखिए ना, एक मुश्किल ये है कि आप कहते हैं 13,000 मेगावाट अवेलेबल है और हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, बट कंट्री जो अब ये बारिशें हुई और लास्ट 15-25 दिन के अंदर आपने आपने एक इसकी वो भी की थी, हेयरिंग भी की थी, आपके कुछ आपके डिस्कोर्स के अंदर इशू हैं, कराची का तो एक अलग ही कहानी है। तो ये एक बात है। आई जनरेशन पे एक और सवाल करता हूँ, इसके बाद हम कर लेंगे। मैं ये कह रहा था कि आपकी जो अभी 2047 के डिमांड के ऊपर एक आपने की थी, एक हियरिंग की थी, और अखबारों में कवरेज भी आई है कि हर स्टेक होल्डर अपनी बात कर रहा है। जो आपका हाइड्रो वाला है वो अपनी बात कर रहा है, विंड वाला, सिंध वाला अपनी बात कर रहा है, इसके अंदर कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट 4-5 साल में डिमांड जो है वो बिल्कुल फ्लैट चल रही है। आज मैंने नंबर्स देखे हैं, डिमांड जो इस साल की, ठीक है चलो ये साल कोविड का इशू था, लेकिन जो पूरे साल की जो एक्चुअल यूज थी वो पिछले साल से 1% डाउन है आपका। तो बट इस चैलेंजिंग के अंदर आप जो ये 2047 तक बनाते हैं, तो ये इसको आपको मतलब ये कि डिमांड फिगर किस तरह आप एस्टिमेट करेंगे, बिकॉज कोई आपके पास क्रिस्टल बॉल तो है नहीं। आपको मेरा ख्याल है कि रिवीजन इसके अंदर रेगुलर करना पड़ेगा ताकि आप सही तरीके से क्लियर हो आपको। जी जफर साहब, ये मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये का प्लान है, वी आर सपोज टू रिवाइज इट और अपडेट इट एवरी सिंगल ईयर। तो ये आप ये, और जो कॉन्ट्रैक्चुअली उनको बनाना था वो 10 साल का था, लेकिन वो चूंकि पहले 40 तक बना लिया उन्होंने, फिर वो चूंकि 47 पे पाकिस्तान के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये एक क्रिस्टल बॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2027 साल का उसमें ये जनरेशन प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है आज से 15 साल पहले कौन सोच सकता will be the most comparative source of electricity। तो अभी अगले 10-15 साल में क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं, ये जो भी ये प्लान है ये बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगा। ये तो सिर्फ ये है कि एक अंधेरे में शूट करने की बजाय आप एक प्लान ले आए, ठीक है ना। अब जैसे उस दिन एक बड़ा इतराज आया कि जी ये 10 साल का प्लान आना चाहिए, 27 साल का क्यों लाए। मैंने कहा यार, मैंने मिसाल ये दी कि अगर आप मेरे घर पे आते हैं, मैं एक डिश की आपकी एपेटाइट है, मैं आपके आगे 6 डिशेस रख लेता हूँ, फर्ज करें, तो आप एक खा लें, आप छोड़ दें। आप जरूरी तो नहीं कि आप अपनी बदहजमी करें और 6 की 6 डिशेस खाएं। तो ऐसे ही 27 साल का ये प्लान लाएं, जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है वो 10 साल का देख ले। भाई मुझे अगर कोई, मैंने 10 साल की चीज मांगी है, मुझे 27 साल की दे देता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं बाउंड हो गया हूँ। मैं ये देखिए, अब इससे होगा ये, जैसे बजट होता है, आप 5 साल का बजट बनाते हैं, 10 साल का बनाते हैं, 20 साल का बनाते हैं, फोकस तो आपका नेक्स्ट ईयर पे ही होता है ना। बाकी तो हम रोलिंग बेसिस पे आप हर साल जाके अपडेट करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली सेम थिंग। और जो पहले आपने कमेंट दिया कि हर इंटरेस्ट ग्रुप अपने आप को पुश कर रहा है, तो मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट, क्योंकि very first time in the history of Pakistan, across the table, interest groups are expressing themselves and competing against each other. पहले ये हर चीज जो थी वो अंडर द टेबल होती थी, ठीक है। देखिए ना, कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में आप जाते हैं, हर वो आदमी जो अपना माल बेचना चाहता है वो उसकी प्राइस बताता है, और जो खरीदने वाला है वो कहता है हाँ ठीक है, इस बेसिस पे मैं ये स्टॉक इतने में उठाता हूँ। अगर यही, और अंडरग्राउंड जो ये अंडर हैंड डीलिंग से मना क्यों किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन क्यों मना करता है, इसीलिए कि वो रिलायबल नहीं होती, वो उसमें कुछ लोगों को फायदा होता है, बाकी लोगों को नुकसान हो सकता है। तो अब सबसे अच्छी बात ये, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, एवरीथिंग ऑन द टेबल। तो मैं ये इसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ, और ये मेरी नजर में सब टेक्नोलॉजीज, सब इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं, दे आर मोर देन वेलकम टू प्रमोट देयर टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हर सूबे का भी अपना एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। Sindh has all the right to promote their third-based coal projects. KPK has all the right to promote their hydro projects. Balochistan के पास बेस्ट विंड कॉरिडोर है, सिंध के पास बेस्ट, आपके पास जो है ना वो सोलर पोटेंशियल है, तो व्हाई नॉट। पंजाब के पास बहुत सोलर पोटेंशियल है, हर कंपीट करे। प्रोजेक्ट्स भी चाहिए जिसके अंदर हमें पीकिंग प्रोजेक्ट्स भी चाहिए। तो ये हमारी जॉब है, हमारे प्लानर की, एनटीडीसी की और नेपरा की, टू पिक द बेस्ट फ्लावर्स
possible and create the best bouquet for the people of Pakistan. ठीक है, एक सवाल मेरा और है कि RLNG के प्रोजेक्ट आए थे, 3 प्रोजेक्ट थे, बलोक की, हवेली बादशाह और एक जगह और पंजाब के थे। उस पे जब अपफ्रंट टैरिफ दिया गया था 2015 के अंदर, 2014 के अंदर, तो तकरीबन 900 मिलियन पर मेगावाट के डॉलर्स का था टैरिफ था। लेकिन जब इसकी बिडिंग हुई तो तकरीबन 300 मिलियन का फर्क आया पर मेगावाट के अंदर। ये एक बहुत बड़ा फर्क था 6 महीने के अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली वो तो अच्छी बिडिंग हो गई कि ये कॉस्ट जो है कम हुई और इसको हम प्राइवेटाइजेशन कर बेच भी रहे हैं आपके। अगर ये कम्पिटिटिव बिडिंग का जो सिलसिला था, जो हम बातें बहुत पहले से कर रहे थे, अगर ये बातें हो जाती उस वक्त इम्प्लीमेंट, अभी हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट शायद कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें कंट्री को काफी फायदा होता, ताकि हमारी जो कॉस्ट तो है, जिसके ऊपर ऑलरेडी ये कमेटी भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रही है, तो ये जो है इतना ये पोजीशन हमारी ये नहीं होती जो आज की पोजीशन है। आइए आवाज मेरी, तौसीफ आपको आ रही है जी, आवाज? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी यस जी आ रही है। अगर आप मुझसे 4 चीजें पूछते तो चौथी चीज मैं यही कहता है एग्जैक्टली, चूंकि आपने पूछी 3 थी इसलिए मैंने आपको 3 बताई, लेकिन चौथी एग्जैक्टली यही चीज थी बिल्कुल, कि हमें कंपैरेटिव बिडिंग पे जाना चाहिए था। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में मैंने 20 साल काम किया है वहां पे कॉस्ट प्लस या फ्रंट टैरिफ का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि जी आपको अपनी ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी पड़ती हैं। आज वी आर माशाल्लाह इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। अब सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास जब इन्वेस्टर, कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर आते हैं और वो मुझे अंडर प्रेशर करने के लिए कहते हैं कि जी हम आपके लिए बहुत सारे पैसे लेके आए हैं ताकि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन बना सके। मैंने कहा वो किस लिए लाए आप? कहते हैं जी वी वुड लाइक टू सेट अप पावर स्टेशंस इन पाकिस्तान। मैंने कहा जी बिजली तो हमें नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई बात करनी है तो बताइए। तो वो एकदम उनका जो कंपैरेटिव एडवांटेज होता है वो बिल्कुल नेगोशिएटिंग, उनकी जो बार्गेनिंग चिप होता है बिल्कुल वो जीरो पे आ जाता है। मैं उन्हें कहता हूँ बिजली तो नहीं चाहिए, कोई और बात करें, मौसम की बात करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल नाउ। वी एब्सोल्युटली डोंट blackmailed, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैगर, लेकिन दिस इज द कोर थिंग। अगर आप जो जिन कंट्रीज में मैंने काम किया वो दे हैड द बार्गेनिंग पावर, उन्होंने बाकी दुनिया को बुलाया, कंपैरेटिव बिडिंग कराई, नॉट बिकॉज ऑफ देयर मनी। जैसे अबू धाबी में मॉडल ये है कि 60% अबू धाबी गवर्नमेंट रिटेन करती है, 40% जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर करता है। दे हैव नॉट इनवाइटेड देम फॉर मनी, दे जस्ट वांट देम टू हैव देयर स्किन इन द गेम। लेकिन बेसिकली 40% में इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बेसिकली, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया। तो वो कंपैरेटिव बिडिंग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट पे है। वी हैव एनफ जनरेशन, और ये एक बिल्कुल यूटोपिया सिचुएशन है। ये 3, 4, 5 इयर्स बैक आप तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि आप इस सिचुएशन में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दैट वी इन दिस सिचुएशन वी शुड बी वेरी कूल एंड काम एंड वी शुड प्लान थिंग्स वेरी फॉरवर्ड। Tausif, thank you so much. मैं आपसे before we move forward and I pass on the baton to आफ्ताब, मैं आपसे सिर्फ जनरेशन की बात हो रही है तो एक बड़ा ब्रीफली पूछना चाहूंगी। आपने आईजी सेप को भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और आपने शुरू में बात की एनर्जी ट्राइलेमा की, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी की। सो हम लोग जब अभी अपना मिक्स देख रहे हैं एग्जिस्टिंग 4% रिन्यूएबल से, ऑल्दो हमने उसके आईजी सेप में भी और एआरई पॉलिसी में भी दिया है, आप क्या समझते हैं कि हम किस तरीके से अपने मिक्स को, और जैसे आपने बताया कि हमें अब 63,000 मेगावाट्स जो ऑलरेडी हमने लाइसेंस दिए हैं, 34,000 हमारे पास है, तो उसमें हम कितना जल्दी अपना मिक्स बदल सकते हैं और क्या हमें इंटरवेंशन करने की जरूरत है इसमें? देखिए इस वक्त इशू है ना जो हमें रोक रहा है इसको मिक्स को चेंज करने में, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो कतर के साथ गैस का, आरएलएनजी का। क्योंकि वो हमारा टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम वो गैस नहीं उठाते तो वी हैव टू पे फॉर दैट। उसकी वजह से ये इतना बड़ा इशू है कि गोइंग फॉरवर्ड्स हमें वो प्रोजेक्ट्स उनको डिस्पैच देनी ही होगी
नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। और हमारा जो प्राइस है वो 2025 तक लॉक है, जो हमारी क्वांटिटी है वो मेरा 2030 तक लॉक है। पर उसमें मेरी जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी फरवरी में, तो उसमें उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी उस पर आप बात करें, और उस पर, और अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए स्पेशली ऑन द प्राइस साइड, क्योंकि वो बहुत हाई रेट्स पे भी है, तो जब तक वो नहीं होता getting more capacity on renewable energy which is the cheapest will remain a challenge for us। वो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो वो सबसे बड़ा जो हमारा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है उसे वहाँ पे वो हुआ है। लेकिन अदरवाइज अगर वो मैंने ये कंस्ट्रेंट्स हमारे पास ना हो, कोल में भी हमने 50% ऑफ टेक जो है ना हमने गारंटी की हुई है, ये कंस्ट्रेंट्स ना हो तो वी कैन, क्योंकि हमारे पास काफी जो इस वक्त कैपेसिटी है वो ऑलरेडी ऑब्सोलेसेंस की तरफ गई हुई है, क्योंकि काफी कैपेसिटी पुरानी भी है। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो अपनी जो एज है उसको पहुंच रहे हैं, पीपीए उनके जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं, कुछ के हो गए हैं, कुछ के होने वाले हैं। तो हम नेपरा में, मैं आपको एक बात बता दूं कि इवन दो गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर द न्यू एनर्जी पॉलिसी, और अभी 6 तारीख को सीसीआई की मीटिंग है, होपफुली दैट विल बी क्लियर, और उसमें फिर हम कंपैरेटिव बिडिंग पे जा सकेंगे, ऑक्शंस पे जा सकेंगे वंस दैट पॉलिसी इज अप्रूव्ड, क्योंकि अभी पिछली पॉलिसी एक्सपायर हो गई थी, वो अभी तक नई पॉलिसी कोई नहीं है। बट नेपरा में बिजनेस एज यूजुअल है। मैंने बिल्कुल गवर्नमेंट को भी ये बता दिया कि वी आर continue to issue, we started with 17 cents per kilowatt hour। अभी माशाल्लाह जो हमने लेटेस्ट निकाला है वो 3.4 cents per kilowatt hour निकाला है, which is a phenomenal, you know, जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वो बिडिंग के बाद, कंपैरेटिव बिडिंग के बाद इस रेट पे आ रहे हैं, और ये अभी बहुत छोटा सा 50 मेगावाट का है। अगर हमें कॉस्ट प्लस पे भी 100, 200, 300, 500 मेगावाट की अलाउ हो जाए हमें, तो हम बड़े आराम से इसको अंडर 3 सेंट्स ले आएंगे। और under 3 cents in Pakistan, considering our ground realities, investment risk and all that, that's humongous. I must tell you. Interview and energy update, उसमें हमारा top priority जो है वो सब renewables ही है। जी, certainly if we can sort of अगर हम डेफिनेटली अगर हम इसमें पास ऑन कर सकें कंज्यूमर का बेनिफिट, देयर इज नथिंग लाइक इट, एंड दिस इज रियली गुड टू हियर कि क्या है। सो कैन आई प्लीज मूव ऑन टू आफ्ताब एंड आस्क यू टू आफ्ताब शेयर योर थॉट्स, सिंस यू आर फ्रॉम द you are representing the generators, the generation sort of club. So over to you as to how do you view this and your discussion with Tausif. We are really looking thank forward you, to that. thank you, Ayla. Thank you, Ayla. Let me sort of correct my introduction. I have played both sides. I worked for government, and I headed the finance and the performance side of the distribution and all the Gencos. So, and I then joined KEPCO. Also, I'm particularly working for generation side. Very interesting guftagoo, and Tausif sahab, bahut mubarak, or I'm so glad that there are things happening in NEPRA, and we were talking about generation, and then I was, while you guys were talking and I was learning, I was walking into my memory lane that how we have actually reached. तो मुझे दो चीज़ें मेरे जहन में आई कि एक, वो जो गरीब की चादर होती है ना, जब वो पैर पे लेता है तो मुंह पे नहीं आती, जब मुंह पे लेता है तो पैर नंगा हो जाता है। तो जब हमने पास में से इस सारी सिचुएशन में गए थे, तो बिकॉज यू राइटली मेंशन कि हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, और फिर होता ये था कि वो क्यूमुलेट होकर जब हमारे सर पे पड़ती थी तो फिर हमारा नी जर्क रिएक्शन होता था। फिर हम कोई ना कोई एक चाहे वो थर्मल प्लांट लेके आए, चाहे वो रेंटल प्लांट लेके आए, कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो हमने की। सो थॉरो प्लानिंग जो थी 25 साल की या 50 साल की मिसिंग थी, जो कि आई एम ग्लैड दैट यू हैव डन इट। अब इंसिलरी आई बी टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ये कह रहा था क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ, तो दो तीन चीज़ें अभी हमारा, जैसे जफर साहब ने भी कहा कि हमारा डायलेमा में कभी हम डेफिशिएंट हो जाते हैं, कभी सरप्लस हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखी हुई है, तो मैं ये कहता होता कि इट्स नॉट मैथमेटिकल सम कि जनरेशन को आप ऐड कैपेसिटी हो जाती है। कैपेसिटी वो है जो आप डिलीवर कर सकते हैं एंड कंज्यूमर को। ये नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने
पंजाब में लगाई है, कोयटा में डिलीवरी नहीं हो सकती, तो वो मेरी कैपेसिटी में टेक्निकली शुमार होना शुरू हो जाएगी। अब हमने इनहेरिट कर लिया, मैं थोड़ा सा जनरेशन को टच करूंगा, आपका व्यू पॉइंट दूंगा और उसके बाद मैं आगे ले। अब हमने इनहेरिट कर लिया, हम मर्चेंट मार्केट की बहुत बात करते रहे कि मर्चेंट मार्केट आएगी, हम कंपटीशन लेके आएंगे, वैल्यू एडिशंस होगी, हमारे पास इतना बेहतरीन मॉडल जो टेलीकॉम का है कि जब हमने उनको कंपटीशन में लगाया सर्विस भी बेहतर होगी और कॉस्ट भी कम होगी। सो हम उसको क्या देखते हैं कि कब हम लेके आ सकते हैं इफेक्टिवली। ऑनेस्टली 2007 में ये CPPA का और ये जो मर्चेंट मार्केट का मेरे हाथ से पहले एस्क्रो अकाउंट खुला था, वो अभी तक माशाल्लाह अब तो खैर एक्टिव हो गया, लेकिन इसको भी अभी 13 साल लग गए, और जिसको कहते हैं जो ट्रू मीनिंग में अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो वो मेरा सवाल होगा कि वो कब है। दूसरा ये है कि जो सारी सप्लाई चेन में देखें, एंड हैविंग वर्क एक्सपीरियंस और वर्क इन दैट, हमारी सबसे ज़्यादा जो ब्लीडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड पे है, जो मुझे सबसे कम अकाउंटेबल लगता है एज कंपेयर टू द जनरेशन साइड। हमें हमारे सर पे पड़ी जनरेशन कम हो गई, जनरेशन लगा दी, अब जनरेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी पिल्फरेज है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। आप उसके लाइन लॉसेस देखें, TND लॉसेस देखें, वही कंट्रोल नहीं होते। अगर उनको ही सम कर लें तो आपको जो डेफिसिट होता है वो आपको उसके करीब नज़र आता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये सारी सप्लाई चेन में हम पिक एंड चूज करते हैं, कभी सिर्फ जनरेशन को पिक कर लिया, कभी हमने ट्रांसमिशन को अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक किया हुआ। सो डिस्ट्रीब्यूशन साइड को हम कब बेहतर कर सकेंगे और इसको कनेक्ट कर सकेंगे ताकि हमारे पास सिनर्जीज आ सके। जी, सबसे पहले कमिंग टू CTBCM, जो कंपेटिटिव ट्रेड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट है, मैं जब आया तो मुझे पता चला कि वो 1.5 साल से हमारे पास है नेपरा के पास, लेकिन हमने अप्रूवल में अभी हमारे पास पड़ी हुई है कि हमने अप्रूव नहीं किया। तो नेक्स्ट 3 महीने में ज्वाइन करने के बाद मैंने पहला जो सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ मैंने CTBCM का जो बेसिक मॉडल है, डिजाइन था, उसको अप्रूव करवाया। उसके बाद उसमें कुछ कमेंट्स थे हमारे जो हमने उनको दे दिए। CPPA जी आपको पता होगा, MRI एक स्पेनिश कंपनी है जो उनके कंसल्टेंट है, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने टर्की और काफ़ी और जगह के मॉडल्स बनाए हैं। तो उसके बाद 5 फरवरी को हमें CPPA जी ने एडवांस मॉडल जो था उसका या डिज़ाइन वो हमें जमा कराया, और उसके बाद उस पर काम हो रहा है। अभी मैंने 2 महीने पहले एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट है अर्जेंटीना की, बिट्रीज, उसको हायर किया। शी हैज़ डन दिस काइंड ऑफ मॉडल इन 27 कंट्रीज। तो उसने बहुत सारे कमेंट्स दिए, मेरे ख्याल में तकरीबन 3 कमेंट्स हैं हमारे उस डॉक्यूमेंट पे। तो अभी CPPA जी उस पर काम कर रहा है। 30 जून वाज आवर अर्लियर डेडलाइन, लेकिन अभी तक वो हमारे पास आया नहीं है। जैसे वो हमारे पास आएगा आप उसको फिर देख लेंगे, और हमारा अपना पर्सनल टारगेट ये है कि उसको अगस्त के महीने में, बिफोर एंड ऑफ अगस्त, हम उसको अप्रूव कर दें फॉर्मल डिज़ाइन या एडवांस डिज़ाइन को। जिस दिन वो अप्रूव हो जाता है नेपरा से, उसके बाद 1.5 साल के अंदर उसको इम्प्लीमेंट होना है। ये एक्ट में हमारे एक डेडलाइन दी हुई है ऑलरेडी। तो हमारी अप्रूवल जो है उसकी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन वंस द डे वी अप्रूव दैट डॉक्यूमेंट, उसके बाद 1.5 साल के अंदर, तो उसमें एक ह्यूज उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, जिसमें डिफरेंट कंपनीज ने, इंक्लूडिंग डिस्कोज, NTDC, आपको पता है सिस्टम ऑपरेटर अलग हो जाएगा NTDC से, और CPPA जी भी 2 में ब्रेक हो जाएगा, एक मार्केट ऑपरेटर आज बन जाएगा, और एक जो है वो जो लेगेसी प्रोजेक्ट्स है उनको टेक केयर करेगा, एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स कंपनी बन जाएगी। तो ये सारी काम हमें अगले 1.5 साल में करने होंगे। हमारी कंसल्टेंट बिल्कुल तैयार हैं, हमारे लोग बिल्कुल तैयार हैं, और वी आर वेरी अपबीट अबाउट इट। पर्सनली एज चेयरमैन नेपरा, आई फील दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क और गोल्स दैट आई हैव गिवन माई सेल्फ। क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा कि दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। मैंने कहा इम्पॉसिबल टास्क करने का तो मजा आता है, छोटे मोटे काम तो हर एक ही कर लेता है। तो इट्स गोइंग टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि जिस दिन CTBCM यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जो हमारा गवाला दूध में पानी मिला रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी मसाले में जो है ना वो जाली मसाले बनाने छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी दैट is going to initially 18% of the wholesale market basically.
तकरीबन पाकिस्तान में 2000 ऐसे प्लेयर्स हैं विच आर यूजिंग मोर देन 1 मेगावाट्स। तो ये कंपैरेटिव जो मार्केट आ रही है ये पहले उनको इम्पैक्ट करेगी, तो ये डीरेगुलेटेड मार्केट हो जाएगी। अच्छा, एक दो चीजें मैं बताना शुरू में भूल गया कि दो चार टारगेट्स जो मैंने अपने रखे हैं अपने लिए, वो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि बीइंग द रेगुलेटर ऑफ पावर इंडस्ट्री, आई वुड लाइक टू डीरेगुलेट दिस मार्केट एज मच एज पॉसिबल। ये मैंने अपने लिए एक और टारगेट रखा है। अच्छा, फिर इसके अलावा पर्सनली जो सबसे बड़ा मेरा टारगेट है वो ये है, आई वुड लाइक टू टैप बेस्ट ब्रेन्स इन दिस इंडस्ट्री। अब प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। जब ये इंडस्ट्री अच्छी होगी तो अच्छे ब्रेन्स इसमें आएंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक अच्छे ब्रेन्स नहीं आएंगे ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं होगी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग टू मेक व्हाटएवर डिफरेंस आई कैन। अभी मैंने कॉर्नेल की एक LLM ग्रेजुएट रखी है मैंने, और माशाल्लाह शी इज मेकिंग वेरी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन NAPRA। तो अभी मैं टॉप क्लास जो हमारे पोटेंशियल है हमारे पास और ब्रेन्स है उनको मैं इंडक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और NAPRA में विद इन इंशाल्लाह M&D डिवीजन हम लोग एक ट्रांसमिशन और जनरेशन के एक्सपर्ट रखना चाह रहे हैं। हुआ ये कि हमने अपनी इंडस्ट्री को लॉपसाइडेड कर दिया। क्यों? हमने सारे इंसेंटिव्स जो है वो जनरेशन में दे दिए। जब हमने सारे जनरेशन में इंसेंटिव्स दे दिए तो सारे के सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जनरेशन की तरफ चली गई। ये ऐसे ही है जैसे आप टांगे ऊपर करके लेट जाएं तो आपका सारा ब्लड जो है वो ब्रेन की तरफ चला जाए। जब आप खड़े होने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर आधे घंटे बाद आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि खड़े होने के लिए आपका जो ब्लड है वो टांगों की तरफ जाना जरूरी है। तो हमारा सारा जो है वो लॉपसाइडेड हो गया है। सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो चली गई जनरेशन में, क्योंकि हमने उनको इतना ज्यादा इंसेंटिवाइज कर दिया, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा जनरेशन वाली साइड पे थी। हमारा ख्याल था कि जिस दिन हमारे मुल्क में जनरेशन आ जाएगी सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये दैट वाज हाफ द स्टोरी। अदर ट्रूथ, हाफ ट्रूथ इज बेसिकली ट्रांसमिशन। अभी इस वक्त हमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको जनरेटिंग प्लांट तो नजर आएंगे, बट द डॉट्स कनेक्टिंग देम व्हिच इज ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चूंकि we could not be able to get the traction of the investors in that particular industry, तो वहां पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं आई। डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा इशू ये है, उसको हम टच करेंगे, कि वो आपने प्राइवेटाइज ही नहीं किया। जब तक आप उसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट के द इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट फ्लोइंग देयर। एक और मोनूमेंटल डिसीजन जो हमने लिया मेरे आने के बाद, हमने पहला ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का लाइसेंस जो है वो प्रोविंशियल ग्रिड को दिया, और वो सिंध को दिया। तो सिंध इज द फर्स्ट प्रोविंस to get a parallel license for a provincial dispatch transmission and dispatch company. तो सिंध के अंदर इस वक्त NTDC भी ऑपरेट कर रही है और STDC भी ऑपरेट कर रही है। तो अगर तो there's going to be a very healthy competition. अभी तो STDC बहुत स्मॉल एक एंटिटी है, they are very limited to probably 1 or 2 projects, लेकिन मकसद ये है give tough competition to NTDC। और जहाँ NTDC कई जगह में प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी की, सो द provincial companies should be able to give tough time to them and do the projects in time and within budget. तो मैं बाकी चीफ मिनिस्टर से भी मिला हूँ। one more thing that I try to do, I'm not trying to be a sitting chairman, I'm trying to visit my constituencies, in a sense the whole Pakistan is my constituency। जितने हमारे लाइसेंसेस हैं मैं चारों प्रोविंसेस में गया, क्योंकि NAPRA is a very unique organization in a sense कि मैं चेयरमैन जो हूँ फेडरल से अपॉइंटेड हूँ। हमारे पास 4 मेंबर्स हैं जो कि चारों प्रोविंसेस से हैं। तो मैं सब प्रोविंसेस से मिला, चीफ मिनिस्टर से मिला, और मैंने हर एक को ये कहा कि जी व्हाई डोंट यू सेट अप योर ओन प्रोविंशियल ट्रांसमिशन एंड ग्रिड कंपनी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। आपके ये एसेट्स तो लगे हुए, वी नीड कनेक्टिविटी। और मैंने तो सो मच सो कि यहाँ तक भी किया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है दे शुड स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ द डिस्कोस। जब तक हम उनको प्राइवेटाइज नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट a step better, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। आपका कैस्को कोयटा वाले जो है वो मेरे ख्याल 35% उसकी रिकवरी रेट है। अब हाउ कैन फेडरल गवर्नमेंट गो एंड गेट देयर रेट एस्टैब्लिश देयर? तो अगर लोकल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट वो उसमें इन्वॉल्व होंगे तो देयर इज अ मच बेटर चांस यू विल बी एबल टू डू द रिकवरीज। इट्स अ वेरी सिंपल साइंस। एक घर भी तब चलता है जब आपकी आमदनी आपके खर्चे से ज्यादा हो।
अगर आपका खर्चा आपकी आमदनी से बढ़ जाएगा, विच अनफॉर्चुनेटली इज द केस इन पावर इंडस्ट्री, के हम जितना जनरेशन में खर्च करते हैं तो हम तकरीबन 17.5% जो है वो लॉस कर देते हैं। ठीक है, हमारा कुछ लॉस ऐसा है जो कि रजिस्टर ही नहीं होता, क्योंकि यूनिट्स जो है वो पहुंच ही नहीं पाते सिस्टम तक। उसके बाद मैक्सिमम हमारी रिकवरीज जो है वो 90% है, 10% लॉस कर देते हैं। तो जिस इंडस्ट्री में आपकी इतना ह्यूज लॉस, अगर आप जो आप जनरेट करें एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, यू आर लूजिंग आउट 25% ऑफ दैट, हाउ कैन यू बी सस्टेनेबल? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है, जो आयला ने भी एनर्जी मिक्स की बात की है, ये सारे वो एक्शंस हैं जिससे हमने वी हैव टू मेक आवर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल। तो बहुत सारी चीजें अभी कॉस्ट सेंटर्स हैं, वी हैव टू टर्न देम इन प्रॉफिट सेंटर्स। तो वो मेरा ख्याल है, मैं आपका आफ्ताब साहब दूसरा क्वेश्चन जो है वो डिस्कोर्स के बारे में ही था। तो अगर कोई स्पेसिफिक आपकी चीज पूछना चाहें तो मैं, मेरा ख्याल है शायद मैंने ब्रॉडली टच कर लिया उसको। थैंक यू। आई थिंक आपने जो जिस्ट है वो कवर कर ली है। उसमें करने के लिए मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि हम पास्ट में सेगमेंटल अटेंशन देते रहे, हमने पूरी सप्लाई चेन को एड्रेस नहीं किया कि हम यहाँ से 100 छेड़े हैं और यहाँ पे सिर्फ 25 आ रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें जो है, जैसे आपने भी आइडेंटिफाई किया, वो इन्वेस्टमेंट ओवरबर्डन होगी और एंड कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा। मैं एक और करूँगा, फिर मैं गिव इट बैक टू आयरा। अब हमने चीज़ें इनहेरिट कर ली हैं। अब मैं आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कोटरदू राइट नाउ, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल टॉक है। अब हमने कर ली। अब भी देखा जाता है कि हम इस वक्त करंटली हम कंसिडर करते हैं कि हम सरप्लस में हैं मौजूद, लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट, बाकी चीज़ें जो हैं हम इशू किए चले जा रहे हैं। सो मुझे वो नहीं समझ आता। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, मैं काफ़ी डिबेट मेरी होती रही कि या तो जब आप कहते हैं ना कि लोड शेडिंग खत्म करनी है, तो लोड शेडिंग खत्म हो सकती है महंगी बिजली ला के भी, आप 1 साल के अंदर कर सकते हैं। जब आप कहते हैं मुझे सस्ती बिजली ला के आनी है, तो वो सस्ती बिजली भी लाई जाती है, लेकिन वो लंबे साल। तो आप पहले ऑब्जेक्टिव जो है ना 1 2 3 सेटल कर लें कि मुझे करना क्या है, मुझे एनर्जी सिक्योरिटी क्या चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, हमारे पास में इकोनॉमिक लॉस है। इकोनॉमी को कितनी हिट पड़ी हुई है इसकी वजह से, ना पावर होने की वजह से। सो दिस हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो हमने क्या करा है। जो सवाल मेरा ये है कि सर, अब हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी है, अब उसको हम मर्चेंट लेके आना चाहते हैं, और जिस तरीके से हम मर्चेंट लेना चाह रहे हैं कि 99.9% तो वो लोग फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और 0.1% जो है उसको साथ compete करे, वो हो नहीं सकता। सो हमें प्रोग्रेसिव एक प्लान लेके आना पड़ेगा, जहाँ पे मार्केट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके कॉन्सेप्ट पे कि चले 10% है, फिर 20% है, फिर 30%, एक प्रोग्रेसिव प्लान लेके आए। जो मुझे नज़र आता है कि वो स्ट्रेट अवे हम कहते हैं कि अच्छा तेरा हम प्लान जो है वो इज गोइंग टू बी टेक एंड पे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू, परहैप्स आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, एंड आई विश आई कुड बी रॉन्ग, बट ऐसे नहीं चलेगा। इसको करने के लिए हमें एक प्रोग्रेसिव प्लान लेके आना पड़ेगा। जनरेशन को भी हमें फेज आउट करना पड़ेगा, और फिर हमें ये देखना पड़ेगा। मैं जस्ट एक आपको अपनी पुरानी, जब मैं नया नया पावर सेक्टर में आया तो उन्होंने कहा ये महंगी बिजली और सस्ती बिजली, तो मैं ये कहता था कि यार कंसिडर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पुरानी सुजुकी है और मेरे पास 100 रुपये ये दिन का, और मैंने जाते हुए 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डलवाना ताकि मैं आ जा सकूँ। अब मुझे तुम कहो कि यार टोयोटा करोला बड़ी अच्छी है, वो तो 10 किलोमीटर करती है 1 लीटर में, तुम बेवकूफ़ हो और ये 4 किलोमीटर वाली करते। तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास तो 100 रुपये ही है ना, तो मैं कहाँ से जाके टोयोटा करोला खरीदता हूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स जिसकी वजह से हम इस मैसअप पे हो गए हैं। सो आप क्या समझते हैं कि हम इसको 5 साल में कैसे लेके चलें सारे स्टेक होल्डर, और के हल कर सके? और मैं आपका जो व्यू लेना चाहूँगा, ये सर्कुलर डेट, सर्कुलर डेट में ये किसने हल करना है, ये कैसे हल होना है? क्या हम क्रैश की तरफ जा रहे हैं या इसने किसी तरीके से, रेगुलेटर इसको कैसे देखता है? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है जी। देखें, हमारे हर चीज का जो हल है ना इस वक्त, वो सिर्फ एक है, डिमांड को पे करना। अगर आज हम समहाउ कोई ऐसे इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज लेके आए, देखिए आज भी हजारों मेगावाट के कैप्टिव प्लांट्स लगे हुए हैं। अब आप ये देखें कि हम उनको इंसेंटिवाइज करते हैं, उनको सस्ती गैस दे के कि आप अपने
25%, 30% एफिशिएंसी वाले प्रोजेक्ट्स को चलाएं, जबकि हमने 60% वाले दुनिया के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है ना इस वक्त प्लांट्स तो हमारे पास लगे हुए हैं। दुनिया में ये प्लांट्स कहीं नहीं लगे हुए। मैं एक दफा जी ने मुझे बुलाया, तो मैं जब वहां गया तो जो फ्रंट पे सोफे पे 3 सीईओ पूरी दुनिया बाहर पीछे खड़ी हुई थी या बैठी हुई थी, क्योंकि इस वक्त या उस वक्त शायद वो कनाडा में एक जगह लगा हुआ था या किसी और जगह पे और एक पाकिस्तान में। तो ये हमारे वी आर वेरी लकी माशाल्लाह। 60% वाले ये एज क्लास मशीन आपकी जी की और आप सीमेंस का रिमूव वाला प्रोजेक्ट जो है, तो देखिए हम बड़ी एक अजीब सी कौम है। हमें नहीं बनानी हो तो हम सुई नहीं बनाते, किसी का बाप नहीं बनवा सकता हमसे सुई, लेकिन हमने बनाना हो तो हम न्यूक्लियर प्लांट भी बना लेते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ले आते हैं। हमने नहीं बनाना हो तो हम यहाँ पे मोटर बाइक भी नहीं बनाएंगे, बल्कि साइकिल भी नहीं बनाएंगे। हमने तो हम GF थंडर भी बना लेंगे विद मोस्ट मॉडर्न एवियोनिक्स। तो अगर जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हमने चीजें ठीक करनी है, मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल है। देखिए ये कोई न्यूक्लियर फार्मूला, अगर न्यूक्लियर फार्मूला भी होता तो मैं कहता कि तब भी हमने माशाल्लाह इसको सर किया हुआ है। ये वो चीजें हैं जो कि हर मैनेजमेंट बुक्स में लिखा है कि क्या चीज सही है। पुट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मुझे बड़ी खुशी हुई, डॉक्टर इशरत हुसैन ने मुझे कॉल करके कहा कि आई एम गेटिंग सो मेनी एप्रिसिएशंस बिकॉज ऑफ हायरिंग यू। अब कहते हैं आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें अब नेपरा की तरफ से देखना नहीं पड़ता कि कोई होगा। तो मैं कहने का मकसद ये है कि गवर्नेंस है आपका या ऑपरेशनल मैटर्स हैं, उसमें इफ यू पुट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अभी मैं हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग हियरिंग कर रहे होते हैं डिस्कोर्स की, नो ऑफेंस विद एनी इंडिविजुअल, लेकिन उनके अंदर मैंने हर चीज देखी ऑन ग्राउंड। शायद वो चीजों को मैनेज करने की उनमें कैपेबिलिटी भी हो, लेकिन बिजनेस सेंस नहीं है। उनको ये नहीं आइडिया कि उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाना है, अपने कंज्यूमर को सर्विस करना है। मेरे पास एक केस आया, मैं नाम नहीं लूंगा, एक डिस्को का, उसमें एक प्राइवेट बनी, उन्होंने बिजली मांगी उनसे, तो उन्होंने कहा मैं एक फेज 2 बना रहा हूँ। तो उसने कहा फेज 2 क्यों बना रहे हो? उसने कहा जी मैं बना रहा हूँ। उसने कहा जी उसकी मुझे बिजली चाहिए। उसने कहा नहीं मैं फेज 2 की नहीं दे सकता, और आप चूंकि तो फेज 2 बना रहे हो तो अपने फेज 1 और 2 के दरमियान कनेक्ट कर लो। तो मैंने अपने लोगों से पूछा ये फेज 2 में बिजली क्या अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, कोई खुदा वास्ते मांग रहा है, कोई चैरिटी में मांग रहा है? कह रहे नहीं। मैंने कहा इसके ये पैसे देगा? कह रहे हाँ। तो मैंने कहा सीईओ को क्या प्रॉब्लम है, ये बिजली बेचने के लिए तो बैठा हुआ है। एक कस्टमर आके इसको ही इज लिटरली बेगिंग हिम टू गिव हिम हिज प्रोडक्ट, लेकिन नहीं, बस नहीं दिल कर रहा। का उस दिन दिल नहीं कर रहा तो नहीं मिलेगी बिजली। आप एक सिंगल फेज का मीटर लगवाने चले जाए आप, तो माइंडसेट जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप जा किसी और तरफ रहे हैं, आपने जाना किसी और तरफ, जाना आपने नॉर्थ में है, सारे लोग आपको पुल कर रहे हैं टुवर्ड्स साउथ। देखिए थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने मुझे बुलाया, एक 1-on-1 मीटिंग भी उनसे हुई और उनको मैंने सारी चीजें बिल्कुल बताई। अभी डिस्कोर्स का सबसे बड़ा इशू क्या है, उनके पास 2 मेथड्स हैं अपने जो भी शॉर्टफॉल है। जो सर्कुलर डेट है क्या, बेसिकली मेरी तनख्वाह अगर 1 लाख रुपए है, मेरे घर का खर्चा 1.5 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपए मेरा डेफिसिट है। तो दिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन अ सॉर्ट ऑफ सर्कुलर डेट के मैं किसी के पैसे नहीं दूंगा, वो उसके नहीं देगा, वो उसके नहीं देगा। तो बट द शॉर्टेस्ट द स्वीटेस्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि जो शॉर्टफॉल है आपका बिफोर यू नो इन योर रेवेन्यू एंड योर एक्सपेंसेस, वो आपका सर्कुलर डेट है। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर हमारा ये माइंड बन जाए कि हमने चादर उतनी ही फैलानी है जितने हमारे पाँव हैं, या जितने पाँव हैं उतनी चादर फैलानी है, तो फिर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अभी क्या करते हैं, या तो ये नेपरा के पास आ जाते हैं, कह रहे हैं जी हमारे लॉसेस बढ़ा दें। एक डिस्को के लॉसेस जो है वो 36% है, मैंने और 38% लेके आए। तो मैंने उन्हें कहा कि ये आप 2% एक्स्ट्रा ले आए हैं। तो उन्होंने कहा जी आप ग्राउंड रियलिटी नहीं देख रहे। मैंने कहा आपको 12% लॉसेस हमने एक्स्ट्रा दिए हुए बिकॉज आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब थी, और आपको जो ये लॉसेस मिले हुए दुनिया से तकरीबन 4.5 टाइम्स हैं। वो कह रहे हैं जी नेपरा बड़ा जालिम है जी, वो देखता नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैंने कहा यार दुनिया की ग्राउंड रियलिटी कुछ और है,
एक आपकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है कि आपको हमने 36% अलाउ किया हुआ है, यानी कि 100 में से आप 36 लूज करके आ जाओ तो हम आपको अलाउ कर देंगे। आप वो भी पूरा नहीं पड़ रहा आपको, उसके भी ऊपर आप आ रहे हैं लॉसेस लेने। तो मेरा ख्याल है कि लंबा मैंने जवाब दे दिया। चीज वही है, करना चाहें तो हम सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। Thank you very much, Tausif साहब. बस last comment and then we'll go. For the competitive market, एक चीज जो particularly role में भी नाम नहीं लूँगा, वो आपको देखना पड़ेगा. Ownership of the system to actually implement it. आप जितने मर्जी अच्छे regulator हैं, and I wish you good luck, क्या करें, जब तक वो जो lineman है या जो जिससे functionary नहीं apply करना नहीं करना. I know one example जहाँ पे B2B चलता था, उन्होंने डिफरेंट के ट्रांसमिशन का इतनी होगी, उसके बाद इतनी होगी, उसका तो अगर वो 12 रुपए का यूनिट था वो 24 रुपए का कर दिया। अब 24 रुपए का यूनिट वो कहाँ बेचने जाएगा? सो वो एक ट्रू कंपटीशन के लिए आपको ये फेयरनेस इन द मार्केट, आई थिंक वो भी देखनी पड़ेगी ताकि ये अप्लाई हो जाए। आई विश यू गुड लक। बैक टू आयला। आप सर मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं। व्हीलिंग के लिए नेपरा बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है और हर फोरम पे हमने एक सेशन अपने यहाँ किया, फिर 3 दिन का लम्स में सेशन कराया, फिर एक सेशन अपने यहाँ किया। गवर्नर पंजाब साहब जो है वो पर्सनली इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जितने इंडस्ट्रीज है पंजाब के वो बड़ा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बात सिंपल सी है, अभी पीहूर में हमने एक मोनूमेंटल डिसीजन ये करवाया कि पीहूर की हमने व्हीलिंग जो है वो करवाई। CPPAG नहीं कर रहा था, हमने वो रिट एस्टेब्लिश करवाई और उन्होंने अलाउ किया। इट्स वेरी काइंड ऑफ देम। पिछले जो सेक्रेटरी साहब थे इरफान साहब, तो वो 7 रुपीज में हो रही है। लेकिन CPPAG ये कहता है कि जी देयर आर डिफरेंट टैक्सेस जो आपने इग्नोर कर दिए, वो आपको डालने चाहिए। अगर मैं वो सारे टैक्सेस डाल दूं तो व्हीलिंग तकरीबन 17-18 रुपए में होती है, विच इज नॉट वायबल। तो ना मेरी नजर में ना 7 रुपए वायबल है, क्योंकि उससे क्या है कि बेचना आपने उन्हीं को है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या डिस्कोज है। तो 7 रुपए में अलाउ कर दूंगा तो 10 रुपए का नुकसान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर यूनिट पे हो जाएगा। अगर मैं आपको 17 रुपए में अलाउ करता हूं तो आप बिलिंग कर नहीं सकेंगे। तो ट्रुथ लाइज समवेयर इन द मिडल। अभी हम उसको देख रहे हैं और जो बिल्कुल प्रूडेंट कॉस्ट होंगी इंशाल्लाह वो हम जरूर अलाउ करेंगे ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी नुकसान ना हो। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि व्हीलिंग स्टॉप हो जाए। नेपरा इज द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ ऑल द मॉडर्न जो जितने भी चीजें आ रही हैं इनिशिएटिव्स, और व्हीलिंग इज वन ऑफ देम। अभी मैंने एक अमेरिकन कंसल्टेंट है उसको हायर किया है व्हीलिंग के लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि उसने दुनिया में कई जगह पे व्हीलिंग का काम किया है ताकि हम वो विल लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस एक्चुअली। थैंक यू। Thank you, Aftab, for a very interesting discourse. तौसीफ, मैं आपसे, आपने बड़े मज़े से आपने डिसाइफर करके बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपने सर्कुलर डेट को बताया। I'll just share my comment on the circular debt, and फिर मैं चाहूँगी कि आप टैरिफ के ऊपर भी आप इसी तरीके से सिंपल तरीके से, बिकॉज ऑडियंस से कुछ सवाल भी आ रहे हैं, सो थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। सर्कुलर डेट में जैसे आफ्ताब ने भी बात की कि T&D लॉसेस बहुत हैं, आपने खुद बात की 17.5% और जो पाकिस्तान का एवरेज पर परहैप्स 18% के करीब है। सो दैट इज जो बिजली सिस्टम में जा रही है वो कम्प्लीटली लॉस्ट है, चाहे उसके जो भी रीजंस हैं। एक ये कि एक तो हमें आई थिंक एज ऑल इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हमें और गवर्नमेंट को स्पेशली इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा टू रिड्यूस दीज लॉसेस। नेपरा हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को देता है और यू फेस दीज चैलेंजेस कि आपसे वो ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे। एक कोई ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जहाँ पे उनको इंसेंटिवाइज किया। एक ये, दूसरा ये कि जो हमारी बास्केट प्राइस है जिसकी, और जो हमारी जो इतनी इंस्टॉलेशन जो एनर्जी की है जिसकी कैपेसिटी प्राइस जो बहुत ज्यादा है, जो शुरू में जफर साहब ने भी की बात कि एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं से तो रिकवर करनी है। एंड दिस इज वेयर सम ऑफ द स्टेक होल्डर्स रियली पैनिक, और वो कहते हैं कि जी हम बिलिंग में भी ये चार्ज डाल दें या हम NTDC का हम कैसे, मतलब जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये कंसर्न्स हैं। आई थिंक थोड़ा सा हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके के, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस कि what is that we need to pay now and what kind of payments that we perhaps we can sort of stretch out, and we can create certain financial instruments, we can bring in financing tools जो हमें energy transition में भी मदद दे,
हमें हमारा एनर्जी मिक्स भी जल्दी एक्सेलरेट करे हमारे लिए, और जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, हमने अभी तो एक प्लान किया हुआ है कि बिजनेस एज यूजुअल में जा रहा है, बट बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट एक्चुअली अ वेरी हैप्पी सिनेरियो कि हम अपना मिक्स जल्दी उसको कर सकें, ना प्राइस के हवाले से ना सस्टेनेबिलिटी के हवाले से. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू डू. Now moving towards the tariff area, because यहाँ पे हमारे chat पे बड़े मजे के लोगों को comments सवाल भी आ रहे थे, and they want to know कि if you can decipher in very simple language for a consumer कि what is made of a consumer tariff, उसमें क्या क्या शामिल होता है, एक ये, और दूसरा ये कि जो नेट मीटरिंग के ऊपर जो नेट मीटरिंग का अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहती हैं जी हमारा चैलेंज है कि अगर हम नेट मीटरिंग कर लें देन हाउ डू वी शुड ऑफ रिकवर आवर कॉस्ट एक्सेट्रा. सो इस पे नेप्रा का क्या ओपिनियन है और कंज्यूमर को कैसे दे कैन मूव मोर टुवर्ड्स नेट मीटरिंग? जी मैं पहले नेट मीटरिंग पे आ जाता हूँ. नेट मीटरिंग नेप्रा ने अलाउ किया हुआ है जी, और ये 3-4 साल से चल रहा है. गो के इसका क्वांटम बड़ा कम है, 30-40 मेगावाट के करीब है अभी टोटल, लेकिन ये हमने हाउस होल्ड को अलाउ किया है जी कि वो अपने रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स लगा के अपनी सस्ती बिजली जनरेट करें, और उसके अलावा जो एक्सेस उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो सिस्टम को बेचें. तो उसमें एक थोड़ा सा मेरी नज़र में जो एक हमसे शायद कोताही हुई है वो हम उसको देखेंगे अभी, कि हमने उनसे कोई फिक्स कॉस्ट नहीं ले रहे. वो हमें थोड़ी सी उससे रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए. उसमें ये है कि बिकॉज इट्स अ सॉर्ट ऑफ फ्री फॉल, जो अफोर्ड कर सकता है वो लगा रहा है, और हमें जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट है उनको भी देखना चाहिए कि ये इतना ज़्यादा ना हो कि सब लोग अपने उस पर चले जाएं, और सिस्टम जो हमारा जिसको हमने कैपेसिटी लगाई हुई है, क्योंकि देखिए ना, हमें एक चीज़ रियलाइज करनी, वो ये जो मैंने पहले बात की कि हमारी जितनी कैपेसिटी लगी हुई है और जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, जब जितना हम कम यूनिट्स बेचेंगे ना, उतने लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स पे वो एडिशनल कैपेसिटी कॉस्ट पड़ जाएंगी. तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. जितने ज्यादा हम यूनिट्स बेचेंगे उतने जो ये फिक्स कॉस्ट है वो ज्यादा नंबर यूनिट्स पे स्प्रेड होगा, तो वो बहुत उसका इफेक्ट कम होगा. तो सबसे बड़ी जो चीज हमें चाहिए बढ़ाएं, क्योंकि सप्लाई हमारे पास है. तो उसके लिए हमने कुछ प्रपोजल्स दिए हुए हैं. जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि ये कैप्टिव प्लांट 4-5-6-8 हज़ार मेगावाट जो है उनको हम सस्ती गैस देते हैं. उनको सस्ती गैस देने के बजाय हमें उनको महंगी गैस देनी चाहिए, ताकि उनको हम डिसइंसेंटिवाइज करें कि वो 25-30% वाले अपनी एफिशिएंसी के वो चलाएं. जब हमारे पास बिजली नहीं थी तब एक अलग बात थी कि हमको इंसेंटिवाइज कर रहे थे कि चला के यूनिट्स और सिस्टम में करें. अभी तो हमारी अपनी चूंकि बिजली ज्यादा हो गई, तो वो 6-7-8 हज़ार मेगावाट हम सिस्टम पे हमें लाना चाहिए. इंडस्ट्री में और जितनी सस्ती बिजली या थर्ड शिफ्ट के बारे में सोचना चाहिए. जब रात को लेट नाइट जब हमें शायद इतनी बिजली की जरूरत ना हो, हम उन्हें सस्ती तरीन बिजली फराहम करें ताकि वो 3 शिफ्ट्स में काम करें. जब उनको सस्ती, देखिए एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर हमने मुल्क को तरक्की देनी है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी इकोनॉमी फिक्स नहीं होगी, और इकोनॉमी तब तक फिक्स नहीं होगी जब तक इंडस्ट्री जब तक फिक्स नहीं हो सकती, जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें पावर सबसे क्रिटिकल चीज है, वो ठीक, जब तक पावर एनर्जी के रेट्स ठीक नहीं होते, हम जो मर्जी कर लें इस मुल्क में. तो इन अ वे हमने बीइंग द रेगुलेटर, I take a blame for this, लेकिन we are keeping this country hostage, this economy hostage, the industry hostage. तो जब तक cost of doing business में पावर सबसे क्रिटिकल है, वो सेंसिबल रेट्स पे नहीं आ जाता, कंपैरेटिव रेट्स पे नहीं आ जाता, हम लोग तरक्की कर ही नहीं सकते. और इससे 2 तरीके हैं पावर के प्राइसेस को नीचे लाने के, सिर्फ 2 तरीके हैं. तीसरा है तो आप लोग मुझे बताएं, मेरे ऑडियंस मुझे बताएं. पहला ये है कि we RE, which coincidentally is also the cleanest as well.
और दूसरा एक जो एफिशिएंसीज है उनको हम खत्म करें एंड ब्रिंग एज मच एफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम एज मच एज पॉसिबल। तो डिस्को साइड पे जो आफ्ताब साहब ने कहा था उसको मैं भूल गया था, एक बात और हम करने जा रहे हैं कि हमारे एक्ट में ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को दो में डिवाइड कर देंगे, एक वायर बिजनेस और एक रिटेल बिजनेस। वायर बिजनेस विल बी अ मोनोपोली बिजनेस, जैसे ट्रांसमिशन है आपका, देखिए हम तो ट्रांसमिशन में भी वैसे कंपटीशन ले आए जैसे मैंने आपको बताया प्रोफेशनल ग्रिड का। जो रिटेल साइड होगी उसमें वी आर गोइंग टू ब्रिंग कंपटीशन, 2 3 4 5 प्लेयर। जैसे मैं हमेशा प्रिंसिपल है कॉलेज में, तो लाहौर उनकी पोस्टिंग हुई तो एक स्पेशल प्रायोरिटी पे चीफ मिनिस्टर की सिफारिश से हमारे घर में 1.5 साल में फोन लगा। तो 1.5 साल में जब फोन लगा तो लोग मिठाइयों के डब्बे लेके आए हमारे घर के। 1.5 साल में फोन, फारूकी साहब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एवरेज वेटिंग टाइम वाज लाइक 12 इयर्स। तो हमने क्या किया, दो चीजों ने इस इंडस्ट्री को आज चेंज कर दिया कि एवरेज पाकिस्तानी हैज 2 3 4 5 कनेक्शंस। वो कनेक्शन इज बेसिकली फोन, बाकी आप सेट तो जो मर्जी यूज कर लें। दो चीजें सिर्फ, टेक्नोलॉजी एंड कंपटीशन। एज वी स्पीक पावर industry also have the technical thing we are blocking and blocking very deliberately is the competition. जिस दिन हम कंपटीशन ले आएंगे, आप देखें ये जनरेशन में क्यों इतनी हमारे जनरेशन की सिचुएशन बेहतर हो गई। अब वो तो हमारा मसला था कि हमने उनको टेक और पे पे लेके आए। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस में हमको टेक एंड पे पे भी लाते तो तब भी आ जाते वो। और गोइंग फॉरवर्ड्स आप देखिएगा इंशाल्लाह वो लोग आएंगे। हमें जनरेशन कैपेसिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी मार्केट 25,000 की है, फर्ज करें डिमांड, कोई 1 लाख मेगावाट्स भी लगा दे, हमें क्या प्रॉब्लम है। अगर एज लॉन्ग जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है कि वो 1-1 2-2 3-3 सेंट भी डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो जो रिटेलर्स हैं, तो कंपटीशन आता है तो 100 बिस्मिल्लाह, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला तब आता है जब व्हेन इट इज अ गारंटीड पेमेंट, व्हेन इट इज अ टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हमें नहीं करना इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड, तो विल बी फाइन। कोई और आपका क्वेश्चन था जो शायद, क्योंकि आपको 2-3 चीजें थी जो आपने टच की। बड़ा ब्रीफली उस सब के कंज्यूमर का जो टैरिफ है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ऑल्दो जैसे ऑब्वियसली कैपेसिटी एंड द एनर्जी परचेज प्राइस की जो चीजें हैं, बड़ा ब्रीफली आप रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। देन देयर आर अ कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हमारे ऑडियंस पूछ रहे हैं, एंड आई जस्ट ऐड एक्चुअली वन हियर ताकि आप दोनों सवाल इकट्ठे ही आंसर कर दें। एक हमारे कॉलीग हैं बेगजिमको सीईओ फ्रॉम ढाका, सैयद नवीद हुसैन, ही इज अ पाकिस्तानी heading a very large group in Dhaka. He's asked that will the PM or the government renegotiate the LNG contracts as well as the coal contracts, the imported coals, in order to sort of bring down the prices? So over to you. जी, जो वो है आपका इंटरनेशनल ब्रांड पे, उस तरह एक इंटरनेशनल प्राइस है, उसको तो आप किसी से नेगोशिएट नहीं कर सकते बिकॉज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वो हम स्पॉट मार्केट पे खरीदते हैं, तो वो तो इंटरनेशनल मार्केट पे लेते हैं। उसमें हमने ये किया है, आई हैव विजिटेड फ्यू ऑफ दीज इंपोर्टेड कोल प्रोजेक्ट्स, और बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वैसे जी कुछ पिक्चर्स मैंने पोस्ट की, लोग समझ रहे हैं हर जगह पे they couldn't believe कि I'm in पाकिस्तान। और ये पोर्ट कासिम पे अभी जो प्लांट बना है, या दूसरा एक और अभी हब वालों ने बनाया है जो आपका कोल का, इमैकुलेट जबरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए। उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि वो जो लोकल हमारा थर कोल है उसकी ब्लेंडिंग कर लें, तो वो उनके पास चांस है 20% ब्लेंडिंग का, तो वो उस तरफ जा रहे हैं। दे आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी, ताकि एटलीस्ट 20% हमारा लोकल कोल चला जाए तो उसकी प्राइस भी कम हो और प्लस इंपोर्टेड ना हो। ये कर सकते हैं हम। गोइंग फॉरवर्ड्स पे देखेंगे, अभी हमारे पास इतना कोल भी नहीं है कि हम इससे ज्यादा जा भी सके। जब कोल क्वांटिटीज हमारे पास ज्यादा हो जाएंगी, माइनिंग ज्यादा होगी, तो फिर हम देखेंगे कि कोई वो होगी तो वो देख लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बट दैट विल बॉयल डाउन टू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेसिकली। जो एलएनजी है,
कॉन्ट्रैक्ट एक कंट्री का उनसे है, उनका 40 मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। और जिस वक्त ये पाकिस्तान में आया था, मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन मुझे बताया गया कि पाकिस्तान सिक्योर्ड वन ऑफ द बेस्ट डील्स फ्रॉम देम। लेकिन जो भी है वो अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस लॉक हो गई उस वक्त। चाहे उस वक्त अगर वो अच्छी डील थी भी, तब भी गोइंग लेटर ऑन, जो चूंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड प्राइस से वो कनेक्टेड है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बहुत नीचे चली गई, लेकिन चूंकि हमारी प्राइस लॉक थी, वी कुडंट कैपिटलाइज ऑन द गेन्स दैट वी कुड हैव रियलाइज्ड अगर हमारा ओपन कॉन्ट्रैक्ट होता। तो वो जी बिल्कुल करनी चाहिए जी हमें, जरूर। ये एक मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ आयला, जस्ट स्मॉल में। तो बिकॉज मेरी भी बैकग्राउंड मुंशी वाली है, सो आई सी ट्रबल के कोविड की वजह से भी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भी जाने की लो होने की वजह से डिमांड में काफ़ी कमी आ गई, और एट द सेम टाइम हमने कैपेसिटी काफ़ी ऐड कर ली है, तो कॉन्सिक्वेंटली जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो हमें बेचना है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली टैरिफ हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल जो ईपीपी वाला कंपोनेंट है वो तो चलो जितना जनरेट करेंगे हो जाएंगे, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट है वो हो जाएगा। The other day I was talking to Islamabad कि क्या तरीका हो सकता है। The only way that I see कि जितनी बिजली ज़्यादा बेची तभी हमारा सर्वाइवल है। I don't see any other by the way कि कोई हल हो जिससे फिक्स कॉस्ट को आप स्प्रेड कर सके। तो एज ए रेगुलेटर, एज ए नेपरा, आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? कि मतलब ऑल्दो कि आप तो नहीं बैठ के डिमांड बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे स्टिमुलेट किया जा सकता है? मैं इरफान साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने आई रिमेंबर के एक फिक्स रेट पे किया था, एंड ही टोल्ड मी कि उसकी वजह से कि 2000 मेगावाट बढ़ गया था। अब जब नीचे चला गया, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन करना। जो लोग कहते हैं ना कि ये कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं थी, मैं ये कहता हूँ कि जब लग रही थी उस वक्त हम 5% से ज़्यादा थे, तो शायद अगर उस तरह ग्रो कर रहे होते तो हमें नेक टू नेक ही चल रहे होते। सो हम क्या करें? गवर्नमेंट को क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है, हम इलेक्ट्रिक कार्स की या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें लेके आ सकें जिसकी वजह से कंजम्पशन हो और हम कमर्शियली सर्वाइव कर सकें? मैंने जैसे पहले बात की कि 5-6 हजार मेगावाट तो बड़े आराम से हम टैप कर सकते हैं। जो ये आपके कैप्टिव प्लांट्स हैं, उनको गैस पे इंसेंटिव देने के बजाय हम उनको डिसइंसेंटिवाइज करें बाय इंक्रीजिंग द गैस प्राइस फॉर देम। क्योंकि जो प्लांट्स वो चला रहे हैं 25 से 30% एफिशिएंसी वाले, उससे बेहतर नहीं है कि हम वो चीपेस्ट गैस अपने 60% एफिशिएंसी वाले प्लांट्स को दें। तो वो बड़े आराम से हम टैप कर सकते हैं, बहुत आराम से। सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडस्ट्री को मैंने कहा कि हम सेकंड और थर्ड वो प्रोडक्शन ज्यादा अपनी कर सकें। और अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 10-15 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। मेरी नॉलेज पे लाहौर के अंदर DHA के अंदर जो मेरे दोस्त वगैरह बिजनेस में हैं, वो बता रहे हैं कि देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ दैट। तो प्राइसेस एकदम बढ़नी शुरू हो गई हैं वहां पे। तो ये प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम, ये भी एक उस बढ़ रहे हैं। तीसरी चौथी बात जो है चीज थी ना, डिस्पाइट कि अभी शायद फैक्ट्रीज, आपकी इंडस्ट्री उस तरह से रिवाइव नहीं हुई अभी कोविड के बाद, जैसे कोविड से पहले चल रही थी, मेरा अपना ख्याल है। लेकिन अभी भी हम 23,000 मेगावाट्स को टच कर गई है हमारी डिमांड। तो इसका मतलब है कि अगर हम फुल पोटेंशियल पे चले जाएं तो हो सकता है 26, 27, 28 मेगावाट्स तक हम चले जाएं। तो और इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि हमारे 24,000 भी, तो दैट इज नॉट बैड एट ऑल। क्योंकि आज भी पावर के ये था कि हाईएस्ट हमने टच कर लिया 23,000 समथिंग मेगावाट। तो कोविड का इम्पैक्ट था, आया जरूर था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सबसाइड ऑलमोस्ट हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि विदिन दिस मंथ आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।
जो ये पीक टच करने वाली बात होती है ना तौसीफ साहब, ये सब टच करके फिर कोई आधे घंटे पर ड्रॉप करती है। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्चुअली उसको कैटर ही नहीं कर सकता कि कॉन्टिन्यूसली 23,000 पे भी चल सके। खैर, दिस इज द लास्ट कमेंट। आइला, प्लीज गो अहेड। I think this is very, it's a very valid point that we need to invest more in our T&D system. And perhaps जैसे अभी आपने provincial companies को आप लोग license दे रहे हैं, and also incentivize the private sector to come in this as well and invest. जो एक side पे जो generation में private investment भी आई, उसमें efficiency भी आई जो आप बता रहे हैं plants, so that's one area. This is a very interesting conversation. बड़े मजे की बातें हो रही हैं, बट टाइम हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया, बट हम थोड़ा सा और भी लेना चाहेंगे। मैं एक्चुअली sort of I would now like to sort of move towards Zafar साहब के Zafar साहब, if you have any questions, and जी then जी मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था, बहुत सारे सवाल थे, बट आई वांटेड एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट, एंड जो लोगों के सवाल काफी हैं इसके अंदर है। तौसीफ, ये जो इस वक्त जो आपका चीजें जरा रुकी हुई हैं, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो हमारा इस वक्त RLNG प्रोजेक्ट है, आपकी बड़ी सपोर्ट रही। आई मीन आई बिकॉज आई नो यू फॉर लास्ट 6, 7, 8 years, तो वैसे भी आपने जब आने के बाद जिस तरह सपोर्ट की उस प्रोजेक्ट के ऊपर और जिस तरीके से टैरिफ हुआ आपका, तो माशाल्लाह वो चीज हो गई इसके अंदर है। अब जो एक और जो बात कल की जो बात है, कल की मीटिंग के अंदर जो इस वक्त बैंक्स वालों का जो है ना, जो मेरे दोस्त भी हैं और सारे थे, जो ये 1.8 की जो ये बात कर रहे थे आपके, तो मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान के लिए जब तक हम जितनी जल्दी बिजली की कॉस्ट कम नहीं करेंगे आपके, हमें जो है ना, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिजली की कॉस्ट कम होगी, सरवाइव करेगी। मैंने उनको ये कहा कि आपको जहन में वो 3% का और 4.5% का लगा हुआ है जहन में, तो आपको ये जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके इसके अंदर है। तो आपकी इसके ऊपर राय क्या है इसके ऊपर? मैं तो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमें पाकिस्तान में और कम करना चाहिए, और कम करना चाहिए, बिकॉज जब जाके जो है ना बिजली की कॉस्ट जो है ना वो कम होगी आपके इसके अंदर। और ये 70% डेट का पोर्शन है, और ये 10 years भी नहीं होना चाहिए जिस तरह दुनिया के अंदर है, 25 साल 27 साल उसके ऊपर हो, ताकि हम जो है ना ये अपलोडेड इतना ज्यादा होता है कि हम तबाह हो गए हैं इसकी वजह से। देखिए जी जफर साहब, मेरे इसमें हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हम ये कहते हैं कि 1.8% प्लस स्काईबॉर्ड जो है वो एग्जिस्टिंग रेट पे प्राइवेटाइजेशन हुई हुई है, या ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अब आप हमारे पास आए कि हमें प्राइवेटाइजेशन करनी है, आप 100 बिस्मिल्लाह प्राइवेटाइजेशन करें, लेकिन हमने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को वॉच करना है। आप ये 1.8 को 5.8% कर दें प्लस स्काईबॉर्ड, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पास जिससे कंज्यूमर को फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है, ऐसी प्राइवेटाइजेशन का हमें क्या फायदा है जिसका कंज्यूमर को फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाए? नेपरा बीइंग द कस्टोडियन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, हम कैसे ये अलाउ कर सकते हैं? तो ये बड़ी सिंपल सी, वो कहते हैं, वो बैंकर्स ये कहते हैं कि जी 1.8 बड़ा कम है, ये फलाना। मैंने कहा जी जो है सो है। आपकी बात से मैं पूरी एग्री करता हूं कि जो है ना हमें कॉस्ट कम करनी है। एक और बात प्राइवेटाइजेशन के ताल्लुक से जो है ये है कि एक चीज ऑलरेडी हुई है, और ये उस वक्त, ये आपकी आवाज चली गई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि एक और मैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात करता हूं कि डिस्को के बारे में जाहिर है कि कराची का एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब है, इसमें सवालात भी आए हुए हैं इसके अंदर है। मुझे याद पड़ा था कि जब वो CCOP की मीटिंग थी, जब RLNG प्रोजेक्ट को हम फाइनल अप्रूवल दे रहे थे, सितंबर 2019 की बात है, तो उसके अंदर डिस्को के बारे में जो आपके मिनिस्टर्स थे और उस वक्त सेक्रेटरी पावर थे, उनका ये व्यू था कि डिस्कोस की बारे में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको 1 साल लगेगा, उसके बाद हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो तौसीफ, आपका क्या व्यू है कि जो इस वक्त वो जो बात कह रहे हैं उनकी बात सही है? कोई चीज ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए हमें वेट करना चाहिए डिस्को की प्राइवेटाइजेशन के लिए? क्योंकि अभी तक का डिस्को जो है वो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में नहीं आया है, और मिनिस्टर साहब जो थे उमर अयूब साहब और सेक्रेटरी ने कहा कि वी आर रनिंग अ प्रोजेक्ट व्हिच विल टेक सम टाइम। प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली, इरफान साहब जो एक्स सेक्रेटरी हैं, वो अपनी ट्राई कर रहे थे, अपनी एफर्ट कर रहे थे कि उनकी सिचुएशन बेहतर कर दी जाए।
उनकी रिकवरीज बढ़ा दी जाए, तो उनकी मार्केटेबिलिटी होगी। तो आप चूंकि फाइनेंस के आदमी है, अकाउंट्स के आदमी है, मुझसे बेहतर समझते हैं, तो उनकी मार्केटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब तक वो कितना लॉस कर चुके होंगे, देखिए ना, ये काम तो जब अनबंडलिंग हुई थी वापटा की, तो तभी इनको कॉर्पोरेटाइज किया गया था, इसीलिए किया गया था कि इनकी सिचुएशन बेहतर होगी तो इनकी बाद में प्राइवेटाइजेशन होगी। आज 20 साल हो गए, आप उसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, वो किस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि इसकी ये सिचुएशन हो जाए कि बाद में जो अभी सिचुएशन है उससे भी खुदा ना खासा डिटेरियोरेट हो जाए, तो मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल we should strive to privatize them as अभी उन्होंने 2 तो शायद ईयर मार्क कर दिए और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को भेज दिए हैं, शायद मैं नाम तो नहीं यहाँ लेना चाहता, लेकिन 2 कंपनीज को उन्होंने शायद थोड़ा एस्केलेट किया है और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास भेज दिया है, आपको शायद पता होगा। तो हाँ, लेकिन अभी बोर्ड पे नहीं आया। लेकिन एक और बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयला, मेरा आखिरी सवाल होगा, बिकॉज और सवाल बहुत सारे हैं रिगार्डिंग आईपीपी की जो एक टास्क फोर्स इस वक्त जो है, इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत एक एक्सटेंसिवली एक्सरसाइज कर रही है तमाम आईपीपी के जो है। मैं लास्ट 2 दिन पहले इस्लामाबाद में था, तो आई मेट ऑल दोज थिंग, और वो सारे के सारे रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं टास्क फोर्स से, जो इशू टास्क फोर्स जो उन्होंने कमेटी ने निकाला है। आपका क्या व्यू है, क्योंकि जो हमारी प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी ये जो है ना, ये चीज एक ऑब्वियसली एक शो स्टॉपर हो गया है आपका। जिनसे भी हम इन्वेस्टर से बात करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि ये इस टास्क फोर्स का रिजल्ट क्या आएगा। आपका क्या व्यू है कि ये कब तक का हो जाएगा और इसका हमें हासिल क्या होगा आपका? बिकॉज हमने 99 का इशू देख लिया, जब बहुत सारे जितने पावर प्रोजेक्ट थे वो एक इतना ज्यादा इशू आया कि 8 साल तक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा आपका। आई एम श्योर गवर्नमेंट ये मिस्टेक नहीं करेगी, और जो लोगों से मेरी बात हुई है जो कि आईपीपीज हैं, वो ये कहते हैं कि कॉर्डियल रिलेशन हो रही है। बट व्हाट इज योर व्यू, बिकॉज नेपरा के बंदे भी उसमें शामिल हैं, कब तक का हो जाएगा और हमें क्या बहुत ज्यादा मटेरियली फायदा होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट, अपना पावर कॉस्ट के अंदर? मैं इसमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इसलिए कि मेरी नजर में मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट जो है, उसमें उसका जो सबसे बड़ा फायदा है मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट का, कि आज तक हमारी इंडस्ट्री पे जो भी इल्जाम लगा वो उन्होंने कम से कम एक बुक की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। तो अब हर चीज एक जगह कैप्चर हो गई है, उसमें हर चीज मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपने शायद मेरा इंटरव्यू, हम प्रूफ नहीं होता, मेरी नजर में वो इनोसेंट है और दे आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि इस मुल्क में एनर्जी सेक्टर के अंदर किसने इन्वेस्ट करना है जनरेशन साइड पे? क्या गवर्नमेंट के पास इतना पोटेंशियल है कि वो गोइंग फॉरवर्ड्स पावर प्लांट्स लगाए? क्या उसको लगाने चाहिए? ना है, ना वो लगाएंगे। किसने लगाने? इन्वेस्टर्स, लोकल, एब्सोल्युटली नो प्रूफ ऑफ दैट। क्या अगर ये साबित हो जाए कि किसी ने कोई क्रिमिनलिटी की है, हमें उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। क्या किसी ने एक्सेसिव प्रॉफिट्स बनाए हैं, हमें उसको देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। कोई एक्शन लेना चाहिए? अभी मेरा ख्याल ये है जाती कि ना नेगोशिएशन कमेटी जो है, इट्स कॉल्ड आईपीपी नेगोशिएशन कमेटी, उसको खुद भी पता है कि वो उसकी टाइमलाइन क्या है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो जितना इनसे डिस्कस करते जा रहे हैं, उनको बहुत सारी चीजें, दे आर लर्निंग ऑन द जॉब, और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं। तो मैं अगर ये कहूँ, उसमें 2 नेपरा के लोग भी बैठे हुए हैं और नेपरा इज फुली सपोर्टिव। तो क्योंकि जब मैं उस चेयरमैन साहब से मिला था, उस कमेटी मीटिंग हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था फर्स्ट डे, तो उन्होंने कहा, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो वो ही वाज सरप्राइज, ही वाज टोटली एस्टोनिश्ड। उन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया था कि शायद नेपरा आपके साथ कोऑपरेट ना करे, क्योंकि नेपरा इज आल्सो सॉर्ट ऑफ एक्यूज्ड इन दैट कि हमने ओवरसाइट की है, बहुत सारी चीजें हमने नहीं देखी इन पास्ट। मैंने कहा, देखिए सर, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ नेपरा का 5 अगस्त 2019 के बाद, और मैं उतना ही इंटरेस्टेड हूँ उन चीजों को अनअर्थ करने में जो चीजें सही नहीं हुई। डैम कि कौन था जो आता है। एक ये कि हम चीजों को
जो गलत हुआ उसको ठीक करें, और कम से कम नेपरा के हेड के तौर पे मैं गोइंग फॉरवर्ड चीजों को बिल्कुल ठीक करूं। जैसे हमारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉ बैक मैकेनिज्म नहीं था, हमने गोइंग फॉरवर्ड वो कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग कर दिया। अब हमने ये इंश्योर कर दिया कि गोइंग फॉरवर्ड जिसके साथ हमने जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय किए उससे 1% भी वो ज्यादा कमाएगा। तो वो प्रिंट स्क्रीन इसलिए होती है ताकि आप सारा वक्त सामने देखें, और बैक व्यू मिरर इसलिए होता है कि कभी कभी पीछे भी देख लें जब आपको जरूरत पड़े। तो ये कमेटी का सबसे बड़ा, दो बड़े फायदे हैं, ये पीछे देखेगी और उसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये होगा कि गोइंग फॉरवर्ड मैं चीजों को ठीक करूंगा। और सबसे इसका जो मैंने उस कमेटी को बताया कि देखें जी, जो चीज तो डुएबल है वो आप करें। आप समझते हैं जेन्युइनली इसके अंदर एक ऐसी चीज पेश की गई है जो कि डुएबल नहीं है फॉर वट एवर रीजन, मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करना चाहता। फर्ज करें एक कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और आपकी नजर में वो चीज अब अनडू नहीं हो सकती, स्पेशली रिट्रोस्पेक्टिवली। गोइंग फॉरवर्ड तो हम कर देंगे, चलें ठीक है, नई कंपनीज के साथ उसके साथ हो सकती है कि नहीं, अगर आपकी नेगोशिएशन में वो हो जाती है तो बिस्मिल्लाह, नहीं होती और आप समझते नहीं होगा तो फॉर वंस फॉर ऑल ये एक्सेप्ट कर लें कि ये नहीं हो सकता, ताकि वी जस्ट प्रेस अ रीसेट बटन इन द पावर इंडस्ट्री और मैं अपनी क्लीन बिल्कुल इंडस्ट्री को आगे चलाऊं। क्योंकि ये जो इल्जामात है ना वो एक तूफान की तरह होते हैं, जो आपको पता है तूफान के आने का खतरा तूफान आ जाने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो मैं कम से कम अपनी इंडस्ट्री को बिल्कुल नीट एंड क्लीन चलाना चाहता हूं, क्योंकि दिस इज नॉट अ एहसान आई एम डूइंग ऑन माय इंडस्ट्री, दिस इज माय कोर रिस्पांसिबिलिटी। मैंने आपका इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाना वो मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। तो जब इन्वेस्टमेंट को लाना मेरी जिम्मेदारी में शामिल है तो इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देना वो भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये तब तक है जब तक वो दे आर बिहेविंग। अगर किसी ने एक जो ट्रैक एक बना हुआ है उसमें से इधर उधर जाने की कोशिश की है तो आई थिंक वी हैव ऑल द राइट, ये नेगोशिएशन कमेटी उसको देखेगी और गोइंग फॉरवर्ड्स इंशाल्लाह नेपरा और ये भी आपको पता है कि ये नेगोशिएशन आफ्टर द नेगोशिएशंस, क्योंकि एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ कोई हैंड ट्विस्टिंग नहीं हो रही या कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं हो रही, यहाँ पे नेगोशिएशंस हो रही हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं नेगोशिएशन तब की जाती है जब आपको पता हो कि ये चीज ऑब्वियस नहीं है, लेकिन कुछ तो और कुछ दो की बेसिस पे शायद नेगोशिएट हो जाए। वंस इट नेगोशिएशंस विल बी सक्सेसफुल, वो हमारे पास आएंगे नेपरा के पास, देन वी विल नेगोशिएट इट if it is in the largest interest of the consumer of Pakistan, why not? We are going to definitely accept it. Right, sir? Over to you, Ayla. Oh, Ayla, over to you. Yeah, I think Aftab, you would like to perhaps touch upon a little bit about K Electric. That's something that you want Yes, to I've been forwarded and I was checking a few of the question. आजकल कराची इलेक्ट्रिक का काफ़ी हॉट इशू है। मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिवली आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट, बिकॉज मैं बास का ये होता है कि व्हेन यू गो इनटू द पास्ट देन वी स्टार्ट ब्लेम गेम्स अनफॉर्चुनेटली, एंड देन और मुझे आई रियली अप्रिशिएट दैट यू लुक एट फॉर विद एन एंगल विद अ लेंस टू रिजॉल्व द इशू। अभी कराची इलेक्ट्रिक जो है वो अखबारों में, मीडिया में काफ़ी पॉपुलर है फॉर द राइट एंड रॉन्ग रीज़न, और ऑफ कोर्स बड़े मसाइल हैं, लोगों को लाइट बिजली नहीं मिल रही, उसकी कई वजूहात मुझे ज़ाती तौर पे पता है वो क्या हो सकती हैं। सो नेपरा भी इसको देख रही है क्या करने के लिए। कैपको पहला अदारा था जो प्राइवेटाइज हुआ था, लेकिन सिर्फ ये जनरेशन था। सो अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है अपने पीपीए के एंड तक। और कराची एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी था जो इंटीग्रेटेड था, जिसके मसाइल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी आए, जियोग्राफिकल एलोकेशंस आई, नेटवर्क के प्रॉब्लम आए, डिस्ट्रीब्यूशन के आए, जनरेशन के आए। सो आप क्या समझते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि कराची वालों के लिए क्या फ्यूचर है और वो कैसे चीज़ें बेहतर होती हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या एक्शन लिए जाएंगे बेहतरी के लिए? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है।
क्योंकि मैं the biggest champion of privatization. चूंकि आपने जिक्र किया कोटद्दू पावर, और मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा शोकेस करना चाहिए कि आज तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिकॉज ऑफ दिस वेरी सक्सेसफुल और मोनूमेंटल प्राइवेटाइजेशन कोटद्दू पावर कंपनी के कितना पैसे कमाए, और अगर ये एक जेनको की तरह होता तो आज पोटेंशियली हमने क्या क्या लॉस किया होता। मेरा जो सबसे बड़ा पर्सनल एक क्रिटिसिज्म है या फ्रस्ट्रेशन है विद केई, जो कि मैं आई डोंट शाय अवे विद एक्सप्रेसिंग दैट, वो ये है कि पूरे प्राइस कर देंगे तो दैट इज देयर सोल्यूशन। एंड हियर वी हैव केई व्हिच इज अ प्राइवेटाइज्ड एंटिटी, उसको सारे कराची कह रहा है कि इसको नेशनलाइज कर लें। तो दे हैव केई मैनेजमेंट पे मैं जब भी बात करता हूँ मैं ये कहता हूँ कि यू हैव फेल्ड द एंटायर स्कूल ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि आपके इन एक्शंस की वजह से, या इन एक्शंस, जब मैंने कहा इन एक्शंस की वजह से तो मैंने उर्दू वाला इन कहा था, लेकिन अब मैं इन एक्शन इंग्लिश वाला कह रहा हूँ कि एक्शंस और इन एक्शंस की वजह से I think we lost him. एक प्राइवेटाइजेशन स्कूल को जो 4-5-6 पेजेस का शायद शो कॉज नोटिस ही है, पिछले 7-8 दिन मैंने इस पे बहुत काम किया है। मेरे ट्रूली अप्रिशिएट माय टीम जिन्होंने इस पे बहुत काम किया। वो गए कराची 4-5 दिन रह के आए और वहां पे लोगों से मिले, उनके एसेट्स में गए, सारा डेटा कलेक्ट किया है, उनको बिठाया मैंने एक अपने कॉन्फ्रेंस रूम में 5 दिन दिन रात वो ये काम करते रहे कि उनको मैंने कहा कि यू आर द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ नेपरा, और आप ये समझो कि आप इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इनके जितने हमने मल्टीलेटरल मल्टी ईयर टैरिफ्स दिए हैं उसके जो उनको एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था, ऑब्लिगेशंस एंड ब्रीचेस। वो काला बड़ा जबरदस्त काम किया यंगस्टर्स ने माशाल्लाह। दे वर वर्किंग लाइक अ 100% श्योर कि ये चले जाएंगे कोर्ट में और जाके स्टे ऑर्डर ले लेंगे और कोर्ट इनको ग्रांट भी कर देगी। लेकिन अफसोस इस बात का होगा कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से अनर्थ करने की कोशिश की सच्चाई को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे शायद लोगों को जस्टिस ना मिले। लेकिन बहरहाल हम तो अपना काम करते जाएंगे और चीजें ठीक करना कोई मुश्किल नहीं। अगर आप हमारा शो कॉज नोटिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक एक चीज कि क्या क्या होना चाहिए था और क्या क्या नहीं हुआ। तो एक दफा मेरा एक अमेरिकन कोलीग था, ही वाज मेंटेनेंस डायरेक्टर, तो उसने कोई बात कर रहा था। उसने कहा कि देखो जब मशीन ट्रिप हो जाती है तो पता तो नहीं चलता ना, हमें जैसे हार्ट अटैक हो जाता है तो पता नहीं चलता। तो एक और हमारा एक अमेरिकन था डायरेक्टर इसका मेंटेनेंस का ही था, उसने कहा नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट, इवन हार्ट अटैक से पहले भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह सिस्टम के फेलियर से पहले भी आपको बिल्कुल क्लियर से जो ना वो सिर्फ मसला ये होता है कि आप, लेकिन अगर आप हर चीज को कैजुअल लेने के आदी हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो हमने इन्वेस्टिगेशन करके उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। दे हैव नाउ 15 डेज, पहला दिन गुजर गया है, दे हैव 14 मोर डेज टू रिस्पॉन्ड। उनके रिस्पॉन्स की बेसिस पे फिर हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि हमारे पास 2 चीजें अवेलेबल है हमारे एक्ट में जो हमें एम्पावर करती हैं। वो एक ही है कि हम उनको फाइन कर दें, which is up to 200 million rupees
maximum या उनका how successfully they present their case. Tausif, thank you so much. This has been such interesting discussion. एक बड़ी candid, एक बड़ी truthful और forward looking discussion ये थी और I'm sure इसके बाद भी बहुत सारे लोग मजीद भी discuss करना चाहेंगे. Time हमारे पास because limited था, हमने भी already overshot about almost 20 minutes because this was such good discussion which covered almost all sort of the starting point, the generation, the T&D, looking at के competitive market landscape क्या होगा और हमें कैसे अपने issues को ठीक करना है जो एक जो बड़ा resonate कर रहा है, जो बड़ा clearly जो message जो पूरी conversation से जो निकल के आ रहा है वो ये कि if all stakeholders sit on the table and have a discussion, have an open and truthful conversation and understand each other, तमाम stakeholders एक viable solution निकाल सकते हैं. आपने बड़ा अच्छा HR की capacity building पे भी किया. पाकिस्तान में talent है भी, हमें और भी build करने की ज़रूरत है. And after all these discussions, I'm sure there'll be good brains that would like to come forward and make these changes. Thank you so much for your contribution. It's been really nice having this discussion with you, and I would like to thank my colleagues as well. And I would just move towards Zafar Saab for a vote of thanks, please. थैंक यू तौसीफ. आई थिंक बहुत मजा आया और अभी भी जो है ना सवालात की बौछार है हमारे पास, मेरे पास अलग से आ रहे हैं, ये सवाल जरूर करें आपके. बट आई थिंक वी रियली एंजॉयड इट एंड आपको एक साल कंप्लीट हुआ है. आई नो यू फॉर लास्ट 7-8 years, वी वर क्लोज टुगेदर. मेरा ख्याल है जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं इसी तरह काम करें, आपको 2 टर्म 3 टर्म मिले ताकि पूरे पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, पाकिस्तान की इंपोर्ट कम हो और बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके. I wish you good luck. I think Pakistan should basically be a winner. Thank you, Tausif, for that. Thank you very much, Zafar साहब. बस मैं ये बता दूं कि इंशाल्लाह I'm not interested in second term. अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं पहली टर्म में कर लूंगा. अगर मैं पहली टर्म में कुछ नहीं कर सकूंगा तो मैं दूसरी टर्म में भी कुछ नहीं कर सकूंगा. Challenges बहुत है तौसीफ, आपको सेकंड टर्म लगानी पड़ेगी इंशाल्लाह. जफर साहब मैं आपको पहली टर्म में इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि इस इंडस्ट्री को राइट ट्रैक पे डाल दूं. ओके, थैंक यू. हम इसको तक नहीं, साउथ की तरफ चली गई है, इसको नॉर्थ की तरफ हमने ले जाके इंजन ठीक कर दिया. और इफ वी ब्रिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इंशाल्लाह हमारी नई नस्ल जो है वो हमसे बहुत बेहतर है. आई फाइंड दीज यंगस्टर्स टू बी एक्सट्रीमली फुल ऑफ एनर्जी, पैशन है, इंटेग्रिटी में हमारी जनरेशन हमसे पिछली जनरेशन में बहुत बेहतर है. इनमें वो करेज है टू से द राइट थिंग्स, टू डू द राइट थिंग्स. और मैं बिल्कुल होपफुल हूँ. पाकिस्तान में वैसे भी कुछ चीजें ऐसी हैं, हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है दैट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो 66% के करीब हमारी अंडर 20 अंडर 30 इयर्स ऑफ एज है. और हम वी आर सेकंड टू नन एज फार एज फर्टिलिटी रेट इज कंसर्न्ड. हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इज प्रॉब्ली सेकंड टू नन. तो पाकिस्तान आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह सुपर पावर वन डे. और उसमें हमें सिर्फ ये करने की जरूरत है कि हम अपना रोल पॉजिटिवली प्ले करें. हम दूसरों की तरफ तो देखते हैं कि वो मैं सही हूँ वो गलत है. मेरे ख्याल में अगर हम इतना फोकस कर लें कि मैं अपने आप को सही कर लूँ और जो काम मुझे वो हम Thank you so much, Tausif. All the best from all of us. And inshallah, we look forward to having more opportunities to have these candid conversations with you. So I would like to close. And 3-hour session for me. We would certainly like to we would need to have something like that. Yeah. So I would like to thank everyone who's joined us here virtually. Thank you, everyone. It's been really enjoyable और बड़ी सारी चीजें clear हुई हैं.
and we need to work together to move forward in the right direction. Thank you, And everyone. if you have any interesting questions, you please note it down. And if you want to have a follow-up session or something, I'll be more than happy to come. और अगर questions आप मुझे भेजना चाहें to answer them through email or something, I'll be more than happy to do that. Excellent. Thank you so much for the offer. I'm sure we will take it up. Shukriya. Thank you very much. Thank you very much. God bless. All the best. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.